Okay. So this is about me, and Madam will give the introduction about herself, and then we'll go with the syllabus. What we are going to cover, what is the production support, and what is the things we are going to cover. What we need to learn, what is the expectation from us, and what expectation we are from you guys. Okay. So handing over to you, Monica Madam. You can introduce yourself. Sure. Thank you, Deepak sir. So, hello everyone. My name is Monica, and I have been in IT since 11 plus years, and especially in application support. So, I have worked for the national security, some stock exchange, TCS, and currently I'm working in investment banking. So, in this application support batch, I'm going to teach you Linux. So I will teach you in a very simple way, in a layman language. So I really don't assume that you know the little bit or even more about the Linux. Okay. But I need your attention for this. And every time whenever you are coming to next lecture, you need to revise. We will also do the some revision before starting any session. But I want your 100% whenever you come to the lecture. Okay. And I Okay, also ma'am. need some Okay. response. Yes, thank you. So let's come to the point because today is an introduction session. So first of all, you should know what is a production support. Okay. So these basics should clear. Then only we can start. So an engineer, suppose any type of engineer, no matter whether it's a software engineer, mechanical engineer, electrical engineer, I think it's all about the solving the problems. Okay. So as an application support engineer or as a production support engineer, you have to solve the problems. An application engineer solves the software related problem, any technical problem which are facing the users. Okay. So do you have some idea about it? Oh, yes, ma'am, little bit. Okay. 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 No, ma'am. Uh, Okay, let me share my screen. Mm, able to see my screen? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am, it is visible. Okay, okay. So actually, I have broken down the syllabus in some modules. So we will go one by one. So in module one, we are going to understand about the Linux concepts. It's everything about the basics from starting from what is Linux and what are the everyday use of the Linux. Even there is a what is the difference between Unix versus Linux. And one more point I can add here, we should also know what is the difference between Windows and Linux. Okay, so in module one, we are going to cover that. In module two, we will cover download, install, and configure the Linux. So, what is the virtual box? See, everyone is having the Microsoft operating system in their laptop or in their machine. So, to install the Linux system, we need the virtual box. We also called it as a VMware. So, what is that, and how to download that? How to install that? How to create the virtual machine? Then what is the Linux distribution, different way to install the Linux. I'm not going to cover the CentOS, rather than I'll do the installation of Red Hat Linux here, and how we do the virtual machine management, and actually who uses the Linux. And I'll give you some quizzes, homeworks, and some handouts, some documents also about it. So that is about the module 2.
And in module 3, it will be the system access and the file system. So, how to access the Linux system, then download and install the putty, then some networking commands, then it's all about the important things about the Linux, and it will be the what type of a Linux file system, how to create files and directory. Like in Windows you used to create the folders, so in Linux how would you create the files, directories? So like that we will see that. uh, Wildcard, changing the password, then soft and hard link, that is also the important thing. We will send we will spend some time on that as well. And after, you can see, after each and every module we will uh, do some homework and some documents and some quizzes. And this is the most important part, module 4, that is a Linux fundamentals. So here we are going to learn about command syntax, how to give the permission to the files, and how to like file ownership. What about the file ownership? How to get the help? So there are some commands in that, and in the we how to use of up arrow keys. We will get to know about some keys, and what is a pipe, differences, how to truncate any file size, compress, uncompress. So everything, this is going to take most of the part. Okay, and so many hours we will going to spend on this fundamentals, because this is so much important. The module 4, we will focus on that. The second most important, that is a Linux system administration. Okay, so how to create any file editor in Linux, set command, user account management, how to switch the users in the Linux, sudo access, then even system log monitor. So these are the important things, because whenever you go to the production support, how to monitor the system logs, these are the things you should know about it. So you can go through of this syllabus. I'll paste it in our group chat as well. Then the second is the shell scripting. Module 6 is the shell scripting. So how to do the scripting in a Linux, and that is so much important whenever you want to automate something, and whenever you wanted to automate any type of a task which is consuming so much time. So that time you have to create the shell scripting, and that is most important. Whenever you go for the interview, then you should know about the basics of Linux, the commands, and the second most is the shell scripting. You should know how to create the shell scripting. So we will take the few examples of that, and yeah, and in that some networking commands and networking components, we will go through of those, as well as the disk management. Yeah, these are the later part we will do, like once we complete the syllabus. It's all about your resume, interview questions. Yeah, so this is the syllabus I have prepared you for the Linux. Can you share this file in our chat box? Because that will be better for us. I cannot hear you. Is anyone saying something? Yeah, I'm audible to you. Your voice is little bit low. Right now I'm audible to you properly. Yeah, So can you just share that file in our chat box? sorry. Can you just share that file in our chat box? Yeah, that's what I told you, right? So after every session, whatever the required documents, whatever the required PPTs or any type of handouts or any documents, yeah, sure, I'll share it in our group chat. Don't worry about it. You will get everything.
Yeah. Okay, Ma'am. thank you so much. Hi. Yes. Hey. मतलब इस टोटल लिनक्स के सिलेबस के लिए कितना टाइम लगेगा? देखिए मैं अज्यूम कर रही हूँ एक 1 मंथ तो इसमें जाएगा या 25 डेज। तो मतलब दीपक सर जो है और मैं हम लोग पैरेलली सिखाएंगे आपको। सो लाइक 2 से लाइक 2 to 2.5 months. मतलब Take it in a 2 that to way. 5 मतलब 3 मंथ्स तक सब सिलेबस हो जाएगा उसके पहले ही हो एप्लीकेशन। जाएगा। यस। मैडम और तेजस कोई सर लाइव लेने वाले प्रोजेक्ट पे काम करते हैं क्या? सॉरी, प्रोजेक्ट पे तेजस काम सर करते हैं क्या कोई? मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रही हूँ। प्रोजेक्ट पे काम करते हैं क्या प्रोजेक्ट? यस 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 यस, हम लोग रियल टाइम में आपको क्या क्या इश्यूज आएंगे, प्रोडक्शन सपोर्ट क्या है, पहले तो ये एक बात आप समझ लीजिए। लेट मी शेयर माय पीपीटी ऑफ एप्लीकेशन सपोर्ट सो दैट यू विल गेट टू नो। आपको समझ में आ जाएगा कि एप्लीकेशन सपोर्ट में आपको एग्जैक्टली करना क्या है। आपको रियल टाइम इश्यूज सॉल्व करने हैं, ठीक है। आप कौन से भी एप्लीकेशन को सपोर्ट करो, आपको बस जो यूजर है उसके इश्यूज सॉल्व करने हैं। और ये रियल टाइम कौन से इश्यूज आपको आएंगे, सो इसकी जो आइडिया है वो मेरे एंड से मैं दूंगी। और दीपक सर जो है वो हाईली लाइक इट्स वन ऑफ द मोस्ट knowledgeable ट्रेनर एंड वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन इन आईटी। सो वो भी 11 to 12 ईयर से एप्लीकेशन सपोर्ट में काम कर रहा है। सो जो भी इशू एप्लीकेशन सपोर्ट में रियल टाइम में आते हैं और वो कैसे रिजॉल्व करने हैं, वो आपको लाइक वी आर गोइंग टू टेल यू दोस थिंग्स, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। अगर किसी को क्लियर आइडिया नहीं है कि प्रोडक्शन सपोर्ट क्या है, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आर यू गोइंग टू टीच एसक्यूएल एज वेल? सो वो जो पार्ट है वो दीपक सर कवर करने वाले हैं, ठीक है। ओके मैडम। Hello, Monica. हेलो, यस। Yes, Monica. Viren this side. या वीरेन। मुझे ये पूछना था कि आप ओके लिनक्स पार्ट आप ले रहे हो, लेकिन जो मिडल वेयर बताया गया था हमको, वो भी आप लोगे प्रोजेक्ट रिलेटेड, या प्रोजेक्ट वो आप लोगे या कोई और मतलब एप्लीकेशन सपोर्ट के लिए जितना जरूरी है, जितनी सारी चीजें जरूरी है, इवन उससे भी ज्यादा, ठीक है, तो वो मैं और दीपक सर कवर करने वाले हैं, ठीक है। यस। एक्चुअली तेजस सर से जब मेरा पहला इंटरव्यू हुआ था तो उन्होंने कुछ मतलब टेक्नोलॉजी बताई थी, कि कुछ टूल्स बताए थे। यस यस, आप वही मैं टूल्स मेरा को लेने वाले हो कि मतलब कुछ अलग लेने वाले हो? मैं आपको Viren, स्क्रीन please शेयर allow करती some हूँ। time. या So we will explain you all the things what we are going to cover. Okay. Once we are done with, so you may ask your questions. Okay. So might be that will cover all your doubts. Please permit for some time. And I ठीक है। don't know like whom you talk with you. I really don't know who is the Tejas sir. सो हेलो अभी क्या करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हेलो हैं और आपके जो यस। सॉरी टू इंटरप्ट मैम, आई एम सागर धनगर। हम्म। मैम हम सब ने जो पहला डेमो अटेंड किया था, तो ओके तेजस भागवत सर करके एक सर थे, उन्होंने वो ओके डेमो मतलब अटेंड किया था, गाइड किया था उसमें। ओके तो उन्होंने बताया था कि वो पूरा क्लास मतलब कोर्स वो ये करने वाले, गाइड करने वाले पूरा, ओके तेजस भागवत सर। ओके। सो तो इसलिए वीरेन ने आप भी वो क्वेश्चन पूछा। अच्छा अच्छा, नो इश्यूज, दैट्स उन्होंने नो पूरा इश्यूज। पीपीटी में बताया था मिडलवेयर में कौन से टूल है, ट्रबल शूटिंग के क्या है, ओके सर्वर नाउ, या वो सब बताए थे। और मैम हम वो एप्लीकेशन सपोर्ट का पूरा स्क्रैच से बताए, मतलब वी आर नॉट नो एनीथिंग अबाउट दैट। यू आर नॉट लाइक आप अवेयर नहीं हो एप्लीकेशन सपोर्ट से, यू आर टेलिंग मी दैट? हाँ, यस यस मैम।
Okay, so Yes, don't yes. worry about it. तो स्क्रैच से Let me पूरा explain. मतलब हाँ Sagar, जमीन नहीं Then आ रहा no Sagar, issues. no worries here. We are considering you are like you don't know anything in IT. Yes, So we are yes, going to yes. teach everything from scratch. Means ओके everything from थैंक यू scratch सर means okay, you want so how to install the Linux or database Oracle, okay? And in ओके IT, थैंक how we work, okay? How to speak with people, what is the process to work in IT, okay? So that all things we are going to cover, okay? So थैंक यू सर whatever you require for production support, so we will deliver all the things. Even it's not for only production support, we are focusing for the development area as well. So you will open for to apply for the production support as well as the development role. Okay, that's kind of थैंक syllabus we designed. So you can go through first, you थैंक यू can सर understand what madam is going to explain. And once we are over with everything, you are open to questions. Okay. And let me tell you one thing, just forget about the past, whatever has happened, who has taken the lecture. So going forward, me and Deepak sir will be there with you. So we will hold your hand and we will teach you everything about the application support engineer. So what exactly we are expecting from you? You have to go through whatever we are teaching you. आपको जब हम लोग कौन सा मॉड्यूल सिखाएंगे, आपको वो चीज गो थ्रू करनी है, क्वेश्चंस है आपको पूछने हैं। स- ये चीजें आप अगर फॉलो करोगे देन ओनली यू आर गोइंग टू सक्सीड इन दिस। ओके, तो हम लोग समझ रहे हैं आपको कुछ नहीं पता है, सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग फ्रॉम स्क्रैच। सो आई एम स्टार्टिंग। सो एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर मतलब उसको दूसरा नाम ये भी है, प्रोडक्शन सपोर्ट इंजीनियर, उसको टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर भी बोलते हैं। सो नाम में ही सपोर्ट है, हमें सपोर्ट करना है वो एप्लीकेशन को। अगर कोई यूजर कौन सा इशू फेस कर रहा है तो उसको हमें सपोर्ट देना है। सो वो टाइप का इंजीनियर मतलब एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर। इट इंश्योर्स द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस। सो अभी एजेंडा इसका मतलब मैं आपको वन बाय वन गो थ्रू करती हूँ। मैं ये पीपीटी नहीं लेने वाली थी, आई थॉट यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दोस थिंग्स, बट लेट इट बी, no issues. So what is application support? So application support is basically it's a bridge between the users and a technical team. So technical team मतलब आप रहोगे, engineers team मतलब technical team रहता है, ठीक है? तो यूजर को अगर कोई इशू फेस हो रहा है तो वो आपको वो पहले तो L1, L2, L3, L4 ये चीजें होती है। L1 मतलब क्या होता है कि जहां पे यूजर को प्रॉब्लम आता है तो वहां पे वो रिपोर्ट करता है, L1 टीम को रिपोर्ट करता है कि हमें ये इशू आया है। L1 और L2 टीम ये एप्लीकेशन सपोर्ट का पार्ट रहता है, ठीक है? तो आप जो रहोगे L1 और L2, यू आर द ब्रिज बिटवीन द यूजर्स एंड टेक्निकल टीम्स, मतलब आप ही टेक्निकल टीम हो। And you ensures the application run efficiently without any errors। मतलब जो एप्लीकेशन को आप सपोर्ट दे रहे हो उसमें वो स्मूथली रन होना चाहिए एप्लीकेशन, उसमें कुछ इश्यूज नहीं मतलब आने चाहिए। अगर इश्यूज आ रहे हैं यू हैव टू रेक्टिफाई, तो वो कैसे करोगे? आप ट्रबल शूटिंग करोगे तब जाके वो इश्यूज रेक्टिफाई होंगे। यू हैव टू मॉनिटर योर एप्लीकेशंस, अगर कुछ अपग्रेड्स आ रहे हैं आपको अपग्रेड करने पड़ेंगे, आपको यूजर को सपोर्ट देना पड़ेगा। सो एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर्स इज ऑल अबाउट दिस इज द थिंग, दिस थ्री थिंग्स यू हैव टू डू इट एज ए एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर। ओके, सो उसमें की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगा? उसमें आपको एप्लीकेशन का हेल्थ मॉनिटर करना पड़ेगा, आपको जो लॉग्स है जो सिस्टम में आ रहे हैं आपको वो मॉनिटर करने पड़ेंगे। फिर अगर कौन से यूजर ने आपको इशू रिपोर्ट किया है कि ये एप्लीकेशन चल नहीं रहा है या ये वेब पेज लोड नहीं हो रहा है, वॉट एवर इट इज, तो आपको वो इशू, वो टेक्निकल इशू आपको ट्रबल शूट करना पड़ेगा। इसका रूट कॉज क्या है, ये इशू क्यों आया है, तो ये सारी चीजें आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, मतलब ट्रबल शूट करनी पड़ेगी।
अगर आपने इशू फाइंड आउट किया और आपको समझ में आया कि ये कोडिंग रिलेटेड या कुछ ऐसा बग है, तो आप जो डेवलपमेंट टीम है आप उसको भी एस्केलेट कर सकते हो। वो सारी प्रोसीजर मैं आपको बाद में बता दूंगी, बट दीज आर द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि आपको एप्लीकेशन मॉनिटर करना है, उसके हेल्थ देखना है, उसके लॉग्स चेक करने हैं। अगर कुछ इशू आता है तो आपको वो टेक्निकल इशू ट्रबल शूट करना है, आपको बग फाइंड आउट करना है अगर कौन सा बग है तो फिर परफॉर्म सिस्टम अपग्रेड्स एंड पैचेस। सो जैसे हमारे मोबाइल में भी नोटिफिकेशन आता है कभी कभी सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने के लिए, या कुछ न्यू न्यू चेंजेस आ जाते हैं, तो वैसे भी कुछ सिस्टम के अपग्रेड्स आते रहते हैं, कुछ पैचेस अपडेट करने पड़ते हैं। तो सेम लाइक दैट अगर कुछ वैसे रहेगा तो आपको वो सारी चीजें भी परफॉर्म करनी पड़ेगी, सिस्टम अपग्रेड करने पड़ेंगे, पैचेस भी अपडेट मतलब परफॉर्म करने पड़ेंगे। देन प्रोवाइड यूजर सपोर्ट एंड ट्रेनिंग, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू कि आपको यूजर को सपोर्ट देना पड़ेगा। जो कोई भी यूजर वो एप्लीकेशन यूज कर रहा है, ठीक है, तो अब आपको उसको रियल टाइम सपोर्ट देना पड़ेगा, उसको इश्यूज क्या आ रहा है, whatever the question they whatever the issue they are facing, आपको उनका इशू सॉल्व करना है, बेसिकली आपको सपोर्ट देना है, इसके लिए नाम है एप्लीकेशन सपोर्ट। फिर आप जब कभी भी कौन सा भी इशू सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो उस अगर उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स मेंटेन आपको करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर रिपीटेड इशू है तो आपके डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी रहेगा, अगर ये रिपीटेड इशू नहीं है तो आपको वो डॉक्यूमेंट मेंटेन करना पड़ेगा, आपको रिपोर्ट्स बनाने पड़ेंगे, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोलैबोरेट विथ डेवलपर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टीम, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब कोई भी एक इशू आता है, एक यूजर ने आपको इशू रिपोर्ट किया कि मुझे सो एंड सो मेरी वेबसाइट डाउन है करके, ठीक है, तो आप वो इशू ट्रबल शूट करोगे, आइडेंटिफाई करोगे कि ये क्यों नहीं हो रहा है, ये इशू क्यों आया है। जब आप ये इशू ट्रबल शूट करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि समथिंग इज रिलेटेड टू द कोड। अगर ये कोड रिलेटेड है तो आपको ये डेवलपर को एस्केलेट करना पड़ेगा, मतलब कोलैबोरेट करना पड़ेगा। ये डेवलपर मतलब L3 टीम रहता है, L1 और L2 मतलब सपोर्ट रहता है, एप्लीकेशन को सपोर्ट देंगे, और L3 रहेगा वो डेवलपर टीम रहेगा, ठीक है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर टीम को आपको एस्केलेट करना पड़ेगा। इंसिडेंट एंड टिकट मैनेजमेंट, तो सपोज जैसे कि मैंने बताया एक इशू आया, वेबसाइट इज डाउन, ठीक है, तो यूजर ये रिपोर्ट कैसे करेगा, यूजर ये रिपोर्ट L1 टीम को एक टिकट रेस करके रिपोर्ट करेगा। टिकटिंग टूल्स भी रहता है, मैं आगे जाके आपको बताऊंगी क्या क्या है वो। तो आपको तब एक टिकट बनाया जाता है और वो टिकट L2 के बकेट्स में जाता है। तो आगे जाके मैं आपको प्रोसीजर वो पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी। बट अगर कोई इशू आता है, ऑल ओवर ग्लोबल इशू आता है, मतलब पर्टिकुलर यूजर के लिए इशू नहीं आ रहा है, ये ग्लोबल इशू सब यूजर्स के लिए आ रहा है, तो इंसिडेंट भी बन सकता है ये केस में कि इतनी सारी यूजर सेम इशू फेस कर रहे हैं, ठीक है। और किसी यूजर की एक सिंपल रिक्वेस्ट है कि उसके रिपोर्ट्स डाउनलोड नहीं हो रहा है, उसका इवन वो पासवर्ड भी रीसेट नहीं कर पा रहा है, ऐसे भी छोटे मोटे इश्यूज आ सकते हैं आपको। तो उसके लिए पहले टिकट बनता है और वो टिकट एक पर्टिकुलर L2 मेंबर को असाइन होता है और वो टिकट के ऊपर आप काम स्टार्ट करते हो। सो दीज आर द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये मैंने आपको बहुत एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाया है। आई होप सो यू हैव अंडरस्टैंड दिस। आपको थोड़ा आइडिया आ चुका है क्या इससे? Yes, ma'am. ओके, Monica madam, please be hold on same page. Okay. या आपको मैं एक रियल टाइम कैन एग्जांपल से कैन बताता एनीवन हूँ। गो ऑन म्यूट? यस ओके दीपक सर, प्लीज कंटिन्यू। ओके। सो मान लो आपने एक रियल टाइम एग्जांपल बताता हूँ जो सब लोग अवेयर होंगे इससे।
हेलो, ओके, प्लीज डोंट बी अनम्यूट टू मी, ओके। कभी आपने एटीएम से मनी विड्रॉल किया और ऐसा हुआ कि आपका पैसा आया ही नहीं और आपको मैसेज आ गया कि योर सो एंड सो अमाउंट हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट, ओके। सो उस टाइम पे आप क्या करते हो? आप देखते हो कि एटीएम कॉल सेंटर का नंबर होगा या वो रिस्पेक्टिव बैंक का कॉल सेंटर नंबर होगा। सो आप क्या करोगे? कॉल करोगे उस नंबर पे, राइट। सो जब आप कॉल करते हो तो आपको कुछ डिटेल्स पूछते हैं कि कब आपने विड्रॉल किया था, कहाँ से किया था, कुछ एटीएम आईडी वगैरह, ठीक है। तो वहाँ पे आपने जिसको कॉल किया तो वो क्या करता है? आपकी डिटेल्स फिल करता है कि दिस इज द पर्सन एंड इनका ये इशू है, इनका मोबाइल नंबर ये है। तो ये जो रिक्वेस्ट रेज करके लेता है, एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं, उसको L1 पर्सन था, ठीक है। इट्स नॉट ए L1 ड्यूटी, बट आप इसको कंसिडर कर लो कि एक L1 इंजीनियर है, लेवल 1 इंजीनियर। तो वो आपकी डिटेल्स फिल करता है, तो वो आपको नहीं पहचानता कि आप कौन हो, क्या हो, ठीक है। तो आप वो कैसे, वो एक इशू क्रिएट होता है, एक इंसिडेंट क्रिएट होता है, ठीक है। ये यूजुअल बिजनेस थिंग नहीं है, ठीक है। तो कुछ इशू आया कि आपने पैसा विड्रॉल किया और आपको मिला ही नहीं, ठीक है, लेकिन मैसेज आ गया, तो यहाँ पे कुछ बग है, ये इशू फिक्स करना है। तो क्या होता है कि एक टिकटिंग टूल में आपकी इंफॉर्मेशन फिल होती है, ठीक है, और वो इंफॉर्मेशन उसके बेसिस पे काम किया जाता है। तो टिकटिंग टूल्स मार्केट में बहुत सारे हैं, जैसे बीएमसी रेमेडी है, सर्विस नाउ है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेंडर्स हैविंग डिफरेंट टिकटिंग टूल्स। सो अब कौन से ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो और टिकटिंग टूल कौन सा है, वो उनके बिजनेस की यूज केस पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो कौन सा टिकटिंग टूल प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो एक रियल टाइम एग्जांपल हो गया, एक इंसिडेंट हो गया, आपने मनी विड्रॉल किया, आपको मिला नहीं, आपने कॉल किया L1 सपोर्ट पर्सन को, गया, उसने टिकट रेज किया। अगर he or she is not able to rectify the issue, so वो क्या करेगा? L2 टीम को फॉरवर्ड करेगा टिकट, ठीक है। L2 टीम उसको इस पे काम करेगी। सो L1 और L2 टीम में एक्सेस में डिफरेंस रहता है। L1 टीम के पास लिस्ट एक्सेस होते हैं, उससे कुछ ज्यादा परसेंट एक्सेस L2 टीम के लिए होते हैं, और आप बोल सकते हो कि मोर स्किलफुल पीपल इन L2 टीम देन L1, ओके। तो अगर वो इशू L2 पर्सन नॉट एबल टू सॉल्व, तो क्या होता है कि अगर उसको जरूरत पड़ती है कि हाँ मुझे डेटाबेस टीम चाहिए, या मुझे डेवलपमेंट टीम चाहिए, या मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर टीम चाहिए, कुछ इंफ्रा में इशू है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीम वो कॉल पे लेते हैं, या जो भी उन टीम्स को लुक करते हैं टूल्स के थ्रू या ईमेल्स के थ्रू, ठीक है। इस टाइप का सपोर्ट करना होता है। तो कोई भी डिप्लॉयड एप्लीकेशन, मान लो आप कोई भी नेट बैंकिंग यूज कर रहे हो और आपको कोई इशू आ रहा है, तो आप टिकट या कुछ रेज करते हो, इशू रेज करते हो। रेज एन इशू करके एक बटन आता है, आपको जो भी जो भी क्या बोलते हैं आप उनको, इशू इशू बार आता है, आप वहाँ पे इशू वहाँ पे डालते हो कि ये इशू है। तो वहाँ पे वो टीम काम करती है, तो डिफरेंट टीम्स उस पे काम करती है। अगर वो कुछ बग है तो डेवलपमेंट टीम लगेगी, या कुछ एडमिन रिलेटेड इशू है तो वो डेटाबेस डेटाबेस रिलेटेड इशू है तो डेटाबेस एडमिन टीम उसमें चाहिए। लिनक्स मीन्स यूनिक्स रिलेटेड है, लिनक्स रिलेटेड इशू है तो लिनक्स एडमिन टीम उसमें चाहिए। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ टीम्स हमें चाहिए वो इशू फिक्स करने के लिए। सो ये अंडरस्टैंड करो कि कुछ भी इशू आता है तो हमारा काम है वहाँ पे कि हमें वो इशू को रिजॉल्व करने के स्टेप्स लेने हैं, या हम उससे स्टार्ट करेंगे कि हाँ कहाँ से इशू आया है। हमें कुछ प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या हमें कुछ नए इशू पे आते हैं, तो उसकी कैटेगरीज होती है, कुछ इंसिडेंट होते हैं, कुछ सर्विस रिपोर्ट्स होते हैं। ये सब हम बाद में सीखेंगे, वो ITIL प्रोसेस है। लेकिन ये रियल टाइम एग्जांपल है, बहुत सारे हम रियल टाइम एग्जांपल के साथ आपको उसको बताएंगे कि हाँ ये एग्जांपल है, इस टाइप का काम होता है। तो रियल टाइम में क्या होता है कि मान लो आप काम कर रहे हो और सर्वर लेवल पे आज आपका डिस्क फेल हो गया, या आपका जो भी सर्वर यूटिलाइजेशन हाई हो गया, या मेमोरी फुल हो गई, सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई हो गया। तो इस टाइप के रियल टाइम की इशू आते हैं, तो हम लोग आपको बताते चलेंगे कि हाँ ये इशू है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, आप क्या स्टेप्स लोगे, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है। कुछ डाउट्स हैं किसी को? तो पहले दिन आप एक्सपेक्ट मत करो कि आपको सब चीजें समझ आ गई, या समझ आ जाएगा, ठीक है। तो सबका यही है कि हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे।
मैडम दीपक सर, यस दीपक सर मान लो कि अगर हम कोई इश्यू सॉल्व नहीं कर पाते तो उस केस में हम क्या करते हैं सर? मतलब क्या करते हैं कि अगर हम नहीं कर पा रहे, उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे, सॉल्व नहीं कर पा रहे? हाँ वही बोल रहा हूँ, अगर आप कोई इशू ट्रेस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आपके साथ टीम होती है, आपका सुपीरियर होता है, राइट, तो आप एक शिप में काम करो तो आपके पास शिप लीड रहेगा, ठीक है, आप उसको बताओगे कि ये इशू है, हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, कोई तो सुपीरियर आपको हेल्प करता है उस केस में। अगर आपको लगता है कि ये मेरे टीम रिलेटेड इशू नहीं है, मुझे और किसी टीम से हेल्प चाहिए, जैसे डेवलपमेंट टीम से हेल्प चाहिए, मान लो आपने कोई इशू सॉल्व कर रहे हो और उस इशू में ऐसा है कि कोड लेवल इशू है, ठीक है, तो आप सॉल्व नहीं कर पाए, तो आप क्या करोगे उस केस में, डेवलपमेंट टीम को ब्रिज पे लोगे मीन्स कॉल पे लोगे, तो उसका एक इंसिडेंट कॉल ओपन होगा, उनको आप कॉल करोगे, आपके पास पूरी डिटेल्स रहती है रिस्पेक्टिव टीम्स की कि हमें इस टाइप के इशू आता है तो हमें किसे कॉल करना होता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है कि आप हर इशू आप सॉल्व कर दोगे। इवन अभी हमारा 11-12 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, तो अभी अभी भी हमें जरूरत पड़ती है कि हाँ हमें और सुपीरियर के साथ जाना चाहिए, और कोई सीनियर आर्किटेक्ट है, उनको हमें पूछना पड़ता है कि हाँ ये इशू आ रहा है, हमें नहीं समझ आ रहा है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि सिंगल हैंडेड इशू सॉल्व करना होता है, यू हैव टू वर्क कोलैबोरेटिव वर्क विद टीम, ओके, और सिंगल टीम कभी काम नहीं करती एक इशू पे, मल्टीपल टीम्स होती है रिस्पेक्टिव इश्यूज, ठीक है, अगर इशू एकदम सिंपल है कि इशू एकदम सिंपल है, जैसे कि आपका सर्वर यूटिलाइजेशन हाई हो गया, तो आप लिनक्स से कुछ कमांड रन करोगे, देख जैसे टॉप कमांड है, पीएस कमांड है, आप अंडरस्टैंड करोगे कि किस डायरेक्टरी की वजह से सर्वर यूटिलाइजेशन हाई हो रहा है, कौन सी प्रोसेस ज्यादा वेटेज ले रही है, ये हम सीखेंगे बाद में, ठीक है, तो अगर वो इशू आप सॉल्व कर सकते हो तो आप उसका इशू क्या था, उसका आपने रिजोल्यूशन स्टेप्स क्या लिया, वो सब आपको वो टिकटिंग टूल में फिल करना होता है इंफॉर्मेशन, या उसको उसके डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं आपको, कि जो भी न्यू कमर्स आएगा या आपके बाद या फ्यूचर में ऐसा कोई इशू आए तो आप उसका टाइम सेव कर सकते हो ऐसा, ठीक है, वीरेन क्लियर, ग्रेट, ओके, यस यस Yes. ग्रेट। और ऐसा Like a कंसिडर MIM करो कि process. 100% इशू कोई सॉल्व नहीं कर पाता आईटी में, ठीक है, हमेशा हमें किसी की हेल्प लगती है, हर इशू 100% कोई सॉल्व नहीं कर पाता, Yes, sir, that's okay. ओके, मोनिका मैडम ते वर गया ना इसेंशियल स्किल्स, Hello, sir, Amol Sound here. यस सर, मुझे पूछना है, हम स्टार्ट के मतलब लिनक्स सेट करेंगे क्या? किस चीज में नहीं नहीं, स्टार्ट, देखो हम जो हाँ हमारा सिलेबस कैसा है, हमने क्या हमने क्या सोचा है कि हम डेटाबेस 2-3 दिन डेटाबेस लेंगे, 2-3 दिन लिनक्स लेंगे, इससे होगा क्या कि आपको डेटाबेस और लिनक्स की जो भी ओपनिंग रहेगी, ठीक है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, अगर कोई जॉब ऐसा है कि मुझे डेटाबेस भी चाहिए, जिसको नॉलेज डेटाबेस का भी हो और लिनक्स का भी हो, मीन्स ओरेकल का भी नॉलेज हो और लिनक्स का भी हो, तो आप उस केस में क्या होगा, अगर एक टेक्नोलॉजी हमने पढ़ा दी, मान लो डेटाबेस पढ़ा दिया, ओरेकल मीन्स डेटाबेस, ठीक है, या लिनक्स पढ़ा दिया, ठीक है, लिनक्स आपने कंप्लीट कर लिया, डेटाबेस पेंडिंग है, और ओपनिंग अगर ऐसे कोलैबोरेटिव ओपनिंग है कि हाँ मुझे डेटाबेस और लिनक्स का नॉलेज चाहिए, तो उस केस में आप रेस्ट्रिक्टेड हो जाओगे, तो हमने क्या सोचा कि हम आपको दोनों पैरेलल पढ़ाएंगे, ठीक है, तो जितना सिलेबस कवर होगा उतना, बट आप एटलीस्ट अप्लाई करने के लिए ओपन हो जाओगे, ठीक है, आप रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहोगे, ये हम ये हमने सोचा था, It's a good opportunity for us. ओके, सो देखो टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज में, तो जैसे कुछ मॉनिटरिंग टूल की जरूरत होती है हमें, डायनाट्रेस, ऐप डायनामिक, ये मोनिका मैडम कवर करेंगे, टिकटिंग टूल मैंने जैसे बोला आपको कि सर्विस नाउ, जीरा, रेमेडी, तो सर्विस नाउ एंड रेमेडी दोनों सेम काम करते हैं, दोनों सेम टाइप ऑफ टूल है, जैसे मान लो मोबाइल मोबाइल काम क्या करता है कि हाँ जो भी, बस ये वेंडर अलग है, जैसे सैमसंग का मोबाइल होगा, नोकिया का मोबाइल होगा, काम दोनों का सेम है, ठीक है, लेकिन हमें हमारा
यूज केस से कौन सा फिजिबल है तो हम वो मोबाइल परचेस करेंगे, राइट। तो ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो डेटाबेस, हम यहाँ पे डेटाबेस लेने वाले हैं ओरेकल डेटाबेस, जो मार्केट में पहले दिन से आज तक ट्रेंडिंग है, ठीक है, मार्केट का बॉस है। तो ओरेकल डेटाबेस अभी उसका रिसेंट वर्जन है 19C, हम वो वर्जन लेने वाले हैं। यहाँ पे हम रिसेंट वर्जन पे ही पढ़ेंगे, ठीक है। और टूल जैसे स्प्लंक हो गया, ग्राफाना हो गया, ये मोनिका मैडम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। जो भी रिक्वायर्ड टूल्स है, इसमें हम सिर्फ एसक्यूएल का सिलेबस भी नहीं कवर करेंगे, हमने यहाँ पे सोचा है कि थोड़ा प्रोग्रामिंग PL/SQL प्रोसीजरल लैंग्वेज भी ऐड करेंगे, ठीक है, जो कि सपोर्ट पर्सन को उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरा है लिनक्स में शेल स्क्रिप्टिंग, जो कोर डेवलपर होते हैं स्क्रिप्ट शेल लिनक्स में, उनको शेल स्क्रिप्टिंग की जरूरत होती है। सपोर्ट पर्सन के लिए शेल स्क्रिप्टिंग लगता नहीं, लेकिन हम ऐसा नहीं हो कि हमें वो एरिया पता नहीं है, हमें पता होना चाहिए, PL/SQL भी पता होना चाहिए और लिनक्स शेल स्क्रिप्टिंग भी पता होना चाहिए। तो हमने वो भी इसमें ऐड ऑन किया है, ठीक है। और ITIL प्रोसेस मीन्स क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी। सिंपल मान लेते हैं, हम ड्राइव करते हैं, तो ड्राइव करते समय अगर हमें रेड सिग्नल मिलता है तो हमें क्या, हमें इंडिकेशन है कि रुकना है, ग्रीन सिग्नल है तो हमें जाना है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के लॉज है, रूल्स है, राइट, फॉर ट्रैफिक को लेके। जैसे IT में एक प्रोसेस होता है, एक मेथोडोलॉजी होता है, उसके हिसाब से ही हमें काम करना होता है। जो मैडम ने बताया ना, स्मूथ एग्जीक्यूशन, हमारे इसमें एप्लीकेशन सही से वर्क होना चाहिए, सही से रन होना चाहिए। सो विथ रिस्पेक्टिव टाइम एंड ट्रैक दी ऑल एक्टिविटीज वी आर यूजिंग द ITIL प्रोसेस, ठीक है, वो हम सीखेंगे। ITIL प्रोसेस में आता है इंसिडेंट, इंसिडेंट किसे बोलते हैं, ठीक है, जो मैंने एग्जांपल दिया ATM का, इट इज वन काइंड ऑफ रियल टाइम एग्जांपल। उसके बाद चेंज, कभी कभी क्लाइंट से रिक्वायरमेंट आता है कि हाँ मुझे ये डेटा है, जैसे मान लो कि मुझे डेटाबेस में डेटा आ रहा है जो लोअर केस में है, तो मुझे फर्स्ट लेटर इनिशियल लेटर कैपिटल करना है, तो बस मुझे छोटा चेंज भी है डेटाबेस में, तो मुझे उसके लिए चेंज रेस करना पड़ता है। तो उसमें कौन कौन से टाइप के चेंज होते हैं, उसकी एक मीटिंग होती है, ठीक है। स्टैंडर्ड चेंज, नॉर्मल चेंज, एक्सपेडाइट चेंज या इमरजेंसी चेंज क्या होता है, जो हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट कर रहा है वो, ठीक है। सो प्रॉब्लम क्या होता है कि इश्यू, इंसिडेंट और प्रॉब्लम में क्या डिफरेंस, ये चीजें हम अंडरस्टैंड करेंगे, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है। हम अलग अलग टीम से कैसे काम करते हैं, दो या टीम्स को मिलके काम कैसे करते हैं, सो वो कोलैबोरेटिव वर्क कैसे होता है, किस सिचुएशन में होता है, वो अंडरस्टैंड करेंगे। एनी क्वेश्चंस? येस दीपक, हाँ आपण जो हा स्लॅब्स पाहत आहोत तो प्रोडक्शन सपोर्टसाठी पण सेम आहे का? आशिष, तुम्ही हिंदीत बोलले तर बाकी लोकांना पण समजेल. ये जो सिलेबस है हाँ, एप्लीकेशन सपोर्ट का, ये प्रोडक्शन सपोर्ट इंजीनियर के लिए भी सेम है क्या? देखो, द वर्क इज सेम, कुछ कंपनी उसको एप्लीकेशन सपोर्ट बोलती है, कुछ कंपनी उसको प्रोडक्ट सपोर्ट बोलती है। तो क्या होता है, आप कोई एप्लीकेशन को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम एप्लीकेशन सपोर्ट। और आपका कुछ खुद का प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, उसको प्रोडक्शन सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी में हो और आप कुछ एप्लीकेशन है, जैसे मैं अभी एक टेलीकॉम एप्लीकेशन को सपोर्ट करता हूँ, जो लिबर्टी ग्लोबल मेरा टेलीकॉम जो मेरा प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे उसको कॉल करते हैं एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर, ठीक है। अगर मोनिका मैडम जो प्रोडक्ट बेस में काम करते हैं, ठीक है, तो उनका खुद का प्रोडक्ट है, उसको कॉल करते हैं प्रोडक्शन सपोर्ट। तो सिलेबस कुछ नहीं है, नाम बस नेम चेंज है, वर्क फ्लो एनीथिंग एवरीथिंग इज सेम। ओके, ग्रेट। हेलो सर, यस, हिमांश दिस साइड। सर इसमें हम F5 एनसिबल गिटहब ऑटोसिस एंड कंट्रोलियम कवर करने वाले हैं। एक मिनट, क्या क्या डाला आपने? देखो, F5 क्या होता है, लोड बैलेंसर क्या है, हम उसका कंसेप्ट आपको बताएंगे कि लोड बैलेंसर कैसे काम करता है। ओके अनसिबल और ये जो बोल रहा हूँ अनसिबल और गिटहब, ये कोर डेवऑप्स रिलेटेड टूल्स है। ओके हाँ, आपको अगर कोई बोल भी रहा है कि हम ये चीजें हैं और ये कवर होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। अनसिबल, सिर्फ अनसिबल सीखने के लिए आपको 3 मंथ्स लगते हैं, ओके गिटहब तो आप ओके 10 दिन में सीख जाओगे, ठीक है।
तो ये चीजें इसमें कवर नहीं होगी, जो ओके, क्लियर और है। ऑटोसिस एंड कंट्रोलिंग। एटोसिस एंड कंट्रोल है, मोनिका मैडम आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू। दीपक सर, कवर होंगे सर सर एक कंट्रोल। कब होंगे? हेलो, यस बट वो कवर होगी क्या कंट्रोल एंड ऑटोसिस? यस यस, एटोसिस एंड कंट्रोलिंग कवर होंगी। देखो जो टूल्स इंटरप्राइज एप्लीकेशन, इंटरप्राइज इसका मतलब जो कि डेमो वर्जन के लिए अवेलेबल नहीं है मार्केट में, वो टूल्स हम इंस्टॉल नहीं कर सकते क्योंकि उसका लाइसेंस कॉस्ट होता है, ठीक है, जो कि लैक्स में होता है, तो हम उसको इंस्टॉल नहीं कर। वो टूल्स का आइडिया मैडम आपको पीपीटी में बताएंगे कि कैसे होता है। बहुत सारा डिफिकल्ट नहीं है, बस एक एरिया होता है कि कहाँ पे आपको लॉग चेक करना है या कहाँ पे आपको जॉब शेड्यूल करना है, वो चीज़ आपको मोनिका मैडम बताएंगे। जो टूल्स हमें डेमो वर्जन पे अवेलेबल है, जैसे मान लो कि स्प्लंक है जो उसको डाउनलोड कर सकते हो, तो वो डेफिनेटली आपको टूल्स इंस्टॉल करके बताएंगे। अगर वो डेमो वर्जन अवेलेबल नहीं है तो उसको कोई भी नहीं बता सकता, तो आपको वो पीपीटी पे शो करेंगे, लेकिन उसका पूरा कि हाँ ये टूल किस, इसका यूज क्या है, और इस पे कुछ टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सब कवर होगा। सर ये आप लेने कब वाले, आफ्टर दी लिनक्स सेशन या उसके पहले? हमने क्या सोचा है, जैसे आईटीएल है तो आईटीएल हम बीच में लेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को उसका अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, राइट। और जो बाकी टूल्स है वो हम बाद में लेंगे। सर वो पहले नहीं हो सकता क्या? सॉरी, सर वो पहले नहीं ले सकते क्या? क्योंकि हमारा सर वी बैच है, हम 15-20 जन हमारा रिपीट है, ओके। तो नहीं, एक बट कौन है इससे सर, क्या म्यूट होगा, कीजिए। बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना। पहले उनका थोड़ा एग्जैक्टली। आइडिया तो हो जाए कि टेक्निकल है क्या, हमें करना क्या है। नहीं, अगर सर हम आपका लिनक्स, कुछ यस भाग्यश्री। मैम हम सर लिनक्स करने वाले हैं। वो हम पैरेलली सीखेंगे भाग्यश्री, मतलब डेटाबेस और लिनक्स हम लोग पैरेलली सिखाएंगे। मैम ऑल्सो हम डिजास्टर रिकवरी और बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान के बारे में बताएंगे हमको। यस यस एग्जैक्टली, दैट दैट ऑल विल गेट कवर। ये थैंक यू सब थैंक यू। प्रोसेस ही है। यस। और क्योंकि जैसे कि आपने बताया सूरज कि आपको टूल सीखने हैं या आप प्रीवियस मतलब बैच से हो, तो आप एक बार इंटरनली मतलब डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि ये पूरा सिलेबस हम लोग पहले कवर करेंगे डेटाबेस का और लिनक्स का, और फिर ही हम लोग टूल्स पे जाएंगे जो कुछ है। सिर्फ आईटीएल का हमें लग रहा है कि बीच में सिखाना जरूरी है, तो हम लोग वो बीच में सिखाएंगे। लेकिन ऐसे कोई अगर मतलब काउंट ज्यादा है कि जिनको टूल्स पहले सीखना है, तो वो डिस्कशन करके फिर उनका अलग से देख सकते हैं हम लोग, अगर कुछ कर पाए तो। नो मैम, नो इशू, आप अपने अपने जैसा अपना फ्लो है ना वैसे चले तो भी कोई ये नहीं है। ओके। मैम हमको कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आप अवेलेबल कर सकते हैं ताकि हम इंटरव्यू हमारा चलते रहे। हमें वही दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम हमको इंटरव्यू में वही आ रहा है कि हम लिनक्स या एसक्यूएल दे देते हैं, बट प्रॉब्लम हमको सिनेरियो बेस्ड में आ रही है। आशीष बताओगे क्या किस सिनारियो बेसिक, एक आध दो क्वेश्चन बताओ जो आपको इशू आ रहा है। और सर वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस है कि मुझे अभी याद भी नहीं आ रहे और वो समझ भी नहीं, वो नहीं रियल लेकिन सिनेरियो बेस्ड। आपने उस टाइप के क्वेश्चन लिख के रखना चाहिए ना, क्योंकि हर इंटरव्यू में जाओगे और हर इंटरव्यू में अलग क्वेश्चंस होंगे, तो आपने वो नोट डाउन करके रखना चाहिए। नहीं दैट इज द मैं बेस्ट प्रैक्टिस। वो वो मैं बाद में सेंड कर दूंगा, ये मेरे पास लिखे हुए हैं, अभी तो नहीं बोल सकता हाँ, मैं ठीक है। शेयर कर दूंगा देखो मैं व्हाट्सएप आपको बताता हूँ सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं। जैसे मैं भी इंटरव्यू पैनल में हूँ, लास्ट 5 साल से करीब करीब मैं इंटरव्यू पैनल में हूँ, ठीक है। तो क्या होता है कि हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे डेटाबेस है, अगर मैं डेटाबेस में आपको पूछ लूँ, ठीक है, कि एक टेबल ड्रॉप हो गया, ठीक है, आप अपनी टीम में एज ए सीनियर पर्सन हो, मान लो आप कोई नॉन प्रोडक्शन डेटाबेस पे काम कर रहे हो, जो कि मान लो रियल टाइम डेटा नहीं है, लेकिन वो कॉपी है रियल टाइम डेटा का टेस्टिंग के लिए, और आपने गलती से कोई जूनियर मेंबर आपके टीम में उससे
टेबल ड्रॉप हो गया, उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, राइट? उस टाइप का क्वेश्चन। तो आप क्या करोगे, पहले अंडरस्टैंड करोगे कि रिकवरी के लिए ऑप्शन है क्या, आप रिकवर कर सकते हो क्या। अगर आपके पास एक्सेस है तो आप देखोगे कौन सी कमांड है जिससे मैं टेबल रिकवर कर सकता हूँ। अगर नहीं, आपके पास राइट्स नहीं है, सो यू विल कॉन्टेक्ट टू द DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर टीम, ओके, इफ दे आर ऑथराइज्ड टू रिवोक द टेबल और रिकवर द टेबल, राइट? उस टाइप के। अगर मैं लिनक्स में जाऊँ, आपका माउंट पॉइंट फुल हो गया। माउंट पॉइंट मीन्स क्या, जैसे हम जैसे ड्राइव बोलते हैं विंडोज में, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, तो वैसे लिनक्स में उसको कॉल करते हैं माउंट पॉइंट, वो भी ड्राइव्स होते हैं। अगर ड्राइव फुल हो गया तो आप उस केस में क्या करोगे, हाँ तो एक कुछ करोगे ना, तो वो फाइल्स कंप्रेस करोगे या जो भी डायरेक्टरीज है वो कंप्रेस करोगे जो अननेसेसरी है, ठीक है, जो आपका रेगुलर यूज में नहीं लगती, ठीक है। कुछ जो भी अनवांटेड लॉग्स है या कुछ 4-5 साल से लॉग्स पड़े हुए हैं, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं आपको, तो आप क्या करोगे, उसको कंप्रेस करोगे, आप ड्राइव का साइज कम करोगे। अगर वो जरूरी नहीं है तो एक सर्वर से लेके दूसरे सर्वर पे उसको सिंक कर दोगे, तो इससे क्या होगा कि आपका स्पेस कम हो जाएगा, आपका स्पेस फ्री हो जाएगा, राइट, सिस्टम का। तो इस टाइप का। अगर आपकी कोई प्रोसेस है जो ज्यादा वेटेज ले रही है, तो क्या करोगे, आप उस प्रोसेस को रिस्टार्ट करोगे। तो कहाँ से ढूंढोगे, तो आप प्रोसेस टेबल में जाओगे, प्रोसेस टेबल मीन्स PS टॉप, वैसे आप चेक करोगे, उस प्रोसेस को किल करोगे, तो उसको रिस्टार्ट करोगे, उससे क्या होगा, आपकी कैशे मेमोरी फ्री हो जाएगी, ठीक है। ये इस टाइप के सिनारियो, राइट? यस सर, यस सर। हाँ, तो ये सब सिनारियो हम कवर करने वाले हैं। मेन तो प्रोडक्शन सपोर्ट में ये है कि हम थियोरेटिकल से ज्यादा हमारा फोकस रहेगा कि सिनारियो बेस, ठीक है। हाँ सर, उसी में दिक्कत जा रही है क्योंकि हमें पहले बैच में ये सब नहीं लिया था हमारा, सिर्फ SQL और लिनक्स ही लिया था और कंट्रोल M, ये सब नहीं लिया था। आप भूल जाओ पहले बैच में क्या सीखे हो। मैं तो हम तो जीरो से पढ़ाएंगे, आपको कितना आता है उससे भी हमें कुछ लेना देना नहीं, ओके ओके। ठीक है। वो आप बता सकते हो कि पहले बैच में वो चीजें कवर हुई थी और इस बैच में नहीं हो रही, तो हम वो मेक श्योर करेंगे। ऐसा होगा नहीं कभी, बट हम हमारा सिलेबस उतना स्ट्रांग रहेगा, उतना कॉन्फिडेंस है हमें, उसमें इश्यू नहीं आएगा। हेलो यस। सर, वो पॉइंट हमने शेयर किए आर्बोर से, ओके। जो जो मिस हुआ है ना पिछले बैच में, तो वो हमने शेयर हाँ, किया है। ठीक है। देखो, लिनक्स में जो मोनिका मैडम कवर करेंगे, तो कमांड्स इतने डीप कवर करेंगे कि हम ऐसे पढ़ाएंगे आपको कि आप एक डेवलपर हो या एक इंफ्रास्ट्रक्चर टीम में काम करने के लिए लायक हो, एकदम सीधी बात, ठीक है, कि आप उस टाइप का ट्रबल शूटिंग कर सकते हो। हम सिर्फ आपको एरर ग्रेप करना नहीं पढ़ाएंगे। अगर ग्रेप पढ़ा रहे तो ग्रेप में कितने टाइप ग्रेप से हमने आपको पढ़ाया नहीं, पता नहीं है कि हम वो एरर फाइंड किया हमने, उसके ऊपर की 3-4 लाइन लेनी है, वो नीचे की 3-4 लाइन लेनी है, ठीक है। और वो एरर कितने टाइम्स आया, ठीक है, कौन से लाइन नंबर पे आया, ठीक है, कब आया, ये सब हम चीजें आपको कवर करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि एक कमांड पढ़ाने में हमें 2 दिन चले जाए, सिर्फ एक ही कमांड में, ठीक है। तो हम टाइम को लेके नहीं कि हम टाइम, हाँ, फास्ट फास्ट करना है, हमें ये देख के करना है कि लोगों को कितना समझ आ रहा है। तो एक्सपेक्टेशन ये रहेगा कि हम हमारा 100% देंगे, लेकिन उतना हम एक्सपेक्ट करेंगे आपसे कि आपने भी उतना Right. ही डिलीवर करना चाहिए, नहीं तो Exactly. देर इज नो बेनिफिट। यस सर। सर और आप डिप्लॉयमेंट का पढ़ाने वाले हैं क्या? हेलो। डिप्लॉयमेंट का देखो, हम डिप्लॉयमेंट क्या होता है कि डिप्लॉयमेंट चीज क्या होता है, समझ लो आशीष, कि कोई भी कोड चेंज किया, एग्जांपल हम कोड लेवल पे लेते हैं, ठीक है, आपने कोई कोड चेंज किया, कोई बिजनेस रिक्वायरमेंट थी कि हमें कुछ ऐसा एडिशन चाहिए, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले आपके पास डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है, आप डेवलपमेंट पे कोड लिखते हो, ठीक है। उसके बाद आप यस सर। EST पे डालते हो, ठीक है, सिस्टम टेस्टिंग के लिए कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है। उसके बाद आप UAT पे डालते हो, उसको यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग बोलते हैं। और उसके बाद हम प्रोडक्शन में, लाइव प्रोडक्शन में वो फाइल या जो भी स्क्रिप्ट है वो डिप्लॉय करते हैं। दैट इज द सिंपल प्रोसेस, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, हमें एक सपोर्टिंग टूल लगता है, विनसीपी या टोड जैसे टूल्स है,
तो वहां से हम उठा के इस टूल्स के थ्रू डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉयमेंट मीन्स कुछ बड़ा कुछ है नहीं है, एक टूल्स की हेल्प से वो फाइल हमारे लोकल सिस्टम से उठा के हम रिमोट सर्वर पे रख देते हैं। इतना डिप्लॉयमेंट है, लेकिन उस डिप्लॉयमेंट के पीछे प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, वो जब समझना जरूरी है। ठीक है, तो डिप्लॉयमेंट हम पढ़ाएंगे कि डिप्लॉयमेंट होता क्या है। आपको पहली बैच में बताया होगा, अगर या नहीं बताया होगा तो ये नहीं डिप्लॉयमेंट नहीं होता है। सर, नहीं ये बताया नहीं मुझे, मेरे 3 इंटरव्यू चले गए ऐसे ही, वो हाँ, डिप्लॉयमेंट के कारण। सिंपल होता है। आपकी एक SDLC लाइफ साइकिल होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। वो हमें इंश्योर करती है कि हमें काम कैसे करना होता है। तो एक सिंपल बताता हूँ, कोई भी प्रोजेक्ट है, अगर मैं आपका 5 मिनट लूँ, आपके पास टाइम हो तो, ठीक है, नहीं लो, मान लो यस बताओ सर। कि कोई नया प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि डेवलपर का काम नहीं होता कभी भी स्टार्ट में। तो आपके बिजनेस एनालिस्ट, ठीक है, या आर्किटेक्ट, ये लोग क्लाइंट से इंटरेक्शन करते हैं, उसको बोलते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग। ठीक है, तो वो रिक्वायरमेंट लेते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या लेते हैं कि आपको कैसा एप्लीकेशन बनाना है। ठीक है, उसमें क्या क्या फॉर्म्स रहेंगे, क्या क्या फैसिलिटीज चाहिए आपको, क्या क्या ऑप्शन चाहिए, जो भी होगा। ठीक है, उसके बाद वो रिक्वायरमेंट क्लाइंट से लेता है। क्लाइंट से लेके ये जो बिजनेस एनालिस्ट या आप आर्किटेक्ट बोल सकते हो, ये क्या बोल करते हैं, उसका एक डिजाइन डॉक्यूमेंट बनाते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है हमें, तो पहले क्या होगा, बिल्डर क्या करेगा, आपको पूछेगा कि हाँ आपको कैसा चाहिए, घर कैसा चाहिए, ठीक है, कितने एरिया में आपको डेवलप करना है। उस हिसाब से वो क्या बनाता है, वो उसका मैप बनाता है, और जो भी लेबर होते हैं उनको हैंड ओवर करता है। राइट, तो कंसिडर लेबर्स आर दी डेवलपर्स। मैं थोड़ा सा आपको वैसा मत कंसिडर करो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल नहीं पर्सपेक्टिव रखो उसको। ठीक है, ठीक तो है इस ठीक केस में क्या होगा कि हमें एक एप्लीकेशन बनाना है। मान लो कोई बैंकिंग एप्लीकेशन है, SBI है, SBI से, SBI इज अ क्लाइंट, और मान लो XYZ ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो। तो XYZ ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस एनालिस्ट या टेक्निकल आर्किटेक्ट वो SBI के पास जाएंगे, उनसे बिजनेस रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करेंगे कि आपको कौन सा एप्लीकेशन चाहिए, उसमें क्या क्या ऑप्शंस होने चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है, और वो आके वैभव वी विल शेयर दी PPTs, ओके। तो वो डॉक्यूमेंट्स वो क्या करेंगे कि एक डिजाइन डॉक्यूमेंट बनाएंगे, और वो डॉक्यूमेंट डेवलपमेंट टीम को देंगे। राइट, सो डेवलपमेंट टीम अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट कि उनको क्या रिक्वायरमेंट है, उससे कोड डेवलप करेंगे। कोड डेवलप करेंगे तो लेकिन उसको टेस्ट करना पड़ेगा, राइट। तो वो डेवलपर लोग कोड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद उसका सिस्टम टेस्टिंग करेंगे, उसका परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे। परफॉर्मेंस टेस्ट करने के बाद थोड़ा सा प्रोडक्शन का डेटा, ठीक है, उसकी एक कॉपी लेंगे और UAT में डालेंगे, UAT एनवायरनमेंट में। सो UAT इज अ यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, उस पर कुछ टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, जो भी टेस्टिंग टीम्स है वो टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। ठीक है, टेस्टिंग परफॉर्म करने के बाद अगर उसमें कुछ इशू आता है, तो वो फिर से डेटा, फिर से वो कोड फिक्स के लिए आएगा डेवलपमेंट टीम के पास। फिर डेवलपमेंट टीम फिर से वो कोड फिक्स करेगी और फिर से टेस्टिंग को देगी। अगर उसमें फिर से इशू आता है तो सेम ये साइकिल रिपीट होगा, डेवलपमेंट टीम के पास आएगा। अगर उसमें कुछ इशू नहीं आता है, तो वो कोड क्या होगा, रियल टाइम में डिप्लॉय होगा। ठीक है, वो उसको बोलते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मीन्स रियल टाइम डेटा। हम जितने भी एप्लीकेशन एक्सेस करते हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इसके पीछे कुछ ना कुछ डेटाबेस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। ठीक है, जैसे हमारा व्हाट्सएप में भी अपडेट आता है, तो क्या होता है कि वो कुछ कोड लिखते हैं। ठीक है, वो अपडेटेड कुछ वर्जन का कोड लिखते हैं और वो डिप्लॉय करते हैं प्रोडक्शन में। जो रियल टाइम डेटा इज द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में डिप्लॉय होने के बाद, ठीक है, अगर उसमें कुछ इश्यू आता है, तो उसको बोलते हैं हम, जो डिप्लॉयमेंट फेज है जिसमें डेटा डिप्लॉय हो गया, कोड डिप्लॉय हो गया, उसके बाद आता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस हेयर एक्चुअली वी आर वर्किंग। तो प्रोडक्शन सपोर्ट इंजीनियर का काम होता है मेंटेनेंस पेज में। वहां पे क्या होता है कि कोई भी इशू आता है उस एप्लीकेशन का, ठीक है, डिप्लॉयमेंट के बाद, वो इशू फिक्स करने करने का काम प्रोडक्शन सपोर्ट एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर करता है। ये पूरा SDLC लाइफ साइकिल है, हम उसको अच्छे से डिटेल में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, अगर इसमें कुछ इशू आता है मेंटेनेंस में, तो वो चेक किया जाता है कि हाँ इसका टेस्टिंग सही से नहीं हुआ, या इसको कोड फिक्स की जरूरत है, डेवलपमेंट टीम के पास जाएगा।
ठीक है, अगर कोई नेटवर्क रिलेटेड इश्यू है तो इंफ्रास्ट्रक्चर टीम उसको फिक्स करेगी। कुछ एडमिन रिलेटेड इश्यू है तो एडमिन टीम, तो कौन सा एडमिन टीम चाहिए, डेटाबेस है, लिनक्स, ये सारा चीज मेजर होगा, राइट। ये पूरा प्रोसेस होता है। तो मेंटेनेंस इज द लास्ट फेज वेयर वी आर वर्किंग, जहाँ पे L1 L2 टीम काम करती है, और L3 टीम को हम डेवलपमेंट टीम बोलेंगे। ये सारी चीजें आपको Okay, मतलब okay, कवर sir. हो जाएगी Thank you, जब sir. हम लोग ITL प्रोसेस पढ़ाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। ऐसा हो सकता है कि आप फंसेंगे कि मैं और मैडम बताते बताते हम आपको बिरयानी का एग्जांपल दे दे। हमें लेना देना नहीं कि कौन क्या बोल रहा है, बस हमें ये है कि आपके दिमाग में वो चीज जानी चाहिए। तो जो रियल टाइम एग्जांपल है हम उससे, क्योंकि आपको आईटी बीच का पता नहीं कि आईटी में क्या काम चलता है, तो हम आपको उस वो कंसेप्ट रियल टाइम एग्जांपल से रिलेट करने का ट्राई करेंगे कि आप समझ जाओ, उसको विजुअलाइज कर पाओ। ठीक है। और एक चीज की, हम डेटाबेस है लिनक्स ले रहे हैं, तो 1 घंटा या 1.5 घंटा बैच, इतना एफर्ट हमारा नहीं, उसके पीछे हमें डॉक्यूमेंट्स बनाने। मैं आपको और मैडम भी आपको डॉक्यूमेंट्स देंगे, नोट्स देंगे, ठीक है, उसके बाहर आपको पढ़ना नहीं है। उसके पीछे अगर मैं 1 घंटा पढ़ा रहा हूँ तो उसके पीछे मेरे 2 घंटे एक्स्ट्रा जाएंगे, मैडम के जाएंगे उसको उसके नोट्स बनाने में। हम आपको विजुअलाइज नोट्स देंगे, ठीक है, कि हम विथ स्क्रीनशॉट कि आप हमने क्या पढ़ा आज, क्या मीन्स कि क्वेरी रन करने के पहले क्या रिजल्ट था, उसके बाद अपडेट करने के बाद क्या रिजल्ट आया, ये सारी चीजें। बट ये सारा हो जाने के बाद इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको हर टाइम रिवीजन करके ही बैठना है क्लास में। और मैं किसी को भी कॉल आउट करूंगी ड्यूरिंग द क्लास, मैं क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करूंगी, सो यू हैव टू गिव द आंसर्स। आपको हर टाइम प्रिपेयर करके ही बैठना है, ब्लैंकली नहीं बैठना है, अदरवाइज उसका ये क्लासेस का कुछ भी फायदा नहीं होगा। अगर करना है तो आपका खुद का 100% दीजिए और कीजिए, बिकॉज हम लोग आपको नोट से लेके रियल टाइम सिनारियो सब सब बताने वाले हैं। तो अभी आपका जिम्मेदारी है कि आपको 100% देना है। कभी भी क्लास में बैठो, रिवीजन करके बैठो, कुछ डाउट्स है हमें पूछो। क्लास के बाद भी हम लोग अवेलेबल रहेंगे डाउट्स पूछने के लिए। हो सकता है आपको तुरंत रिप्लाई नहीं मिले क्लास के बाद, यस। हम हमारे काम में हो सकते हैं ऑफिस के, लेकिन हाँ इंश्योर करेंगे कि आपको रिप्लाई कर दे जब भी हमें बैंडविड्थ है, ठीक है। लेकिन ये हो सकता है, मी एंड मोनिका मैडम आर बोथ फ्रॉम मराठी बैकग्राउंड, सो कभी कभी हमारे वर्ड्स हिंदी में कुछ अलग हो सकते हैं, ठीक है। सो आप अंडरस्टैंड करो। हाँ, आई डोंट हैव एनी इशू और मैडम डोंट हैव एनी इशू, वी विल टीच यू इन इंग्लिश, बट या सो बेस्ड ऑन द क्राउड, सो हमने देखा है कि लोग हिंदी में या मराठी में ज्यादा चीजें ग्रास्प कर पाते हैं। सो हम प्रेफर करेंगे कि हम लोग आपको हिंदी में कन्वर्सेशन कर, और आप कभी भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अगर हम पूछ रहे कि डाउट्स, आपको डाउट्स है तो डेफिनेटली आपको जगह पे क्लियर करना है डाउट्स। अगर बाद में आप बोलोगे तो मुझे ये नहीं समझ आया, सो दैट विल नॉट एक्सेप्टेबल, ओके। और डाउट्स मतलब जो टॉपिक हम लोगों ने आपको सिखाया वो टॉपिक के डाउट्स। और हेलो हमारा मैम। फोकस रहेगा कि आप सिर्फ L1 और L2 के लिए रेस्ट्रिक्टेड न रहे। ये मैंने बात किया था मैडम से भी, और हमने ये डिसाइड किया कि हमने कुछ सिलेबस उसमें ऐड ऑन किया है, जिससे हमारा 15 to 20 डेज बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप, हमें लगता है कि आप लोग सिर्फ L1 L2 के लिए रेस्ट्रिक्टेड न रहे। आप ट्राई करें कि डेवलपमेंट के लिए भी इंटरव्यू देने का ट्राई करें, जैसे कोई एशियन स्क्रिप्ट डेवलपर का रोल है, ठीक है, उतना हम कवर करके लेंगे आपका, ठीक है। हेलो। यस। हेलो सर, पीपीटी शेयर करो ना वो कौन सा पीपीटी चाहिए आपको? अभी दिखाया था ना, वो अभी ग्रुप पे सेंड करो ना वो। ठीक है, हाँ डाल देंगे। ये हाँ ये हो प्रोडक्शन जाने के सपोर्ट बाद। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट। वो जो अभी दिखाया था ना, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का। हाँ हाँ, वो शेयर कर देंगे। भाई हम लोग तो आप लोगों को इंटरव्यू कैसे देना है वो भी देंगे लिख के, उसका टेंशन मत लो। सिनेरियो बेस्ड हेलो होगी ना? Sir, are you taking weekly mock interview? सॉरी, Uh, are you
taking weekly mock interview. टॉपिक के बाद यस, कि वीकली हम लोग आपको आधा घंटा सेशन ले लेंगे, ठीक है। Hello, sir. I am having doubt regarding which tools and technology we are learning. तो ये है कि हम बेसिक से एडवांस आप सिखाने वाले हैं ना, मतलब जैसे कि इंस्टॉल करने से लेकर एडवांस तक सब। हाँ देखो, अभी इंस्टॉलेशन के लिए मैं आपको एक लिंक दे दूंगा डेटाबेस का, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। अगर वो इंस्टॉलेशन के बाद आपको कोई इश्यू आता है, एक चीज मेक श्योर करना कि आप पासवर्ड सिर्फ ओरेकल दो हर जगह, ठीक है। ओके। डेटाबेस जब भी इंस्टॉल करो तो पासवर्ड ओरेकल दो, ठीक है। हम इंस्टॉलेशन लोग आप लोग करो, क्यों? क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा, ठीक है। आप भी और ये खुद से ट्राई, बेसिक मैं दिखा इंस्टॉलेशन सकता है। हूँ। यस, और ये आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ दिक्कत आ रहा है, तो हम लोग वो आपका स्क्रीन शेयर करके देख लेंगे यस जब यस, भी ये नेक्स्ट। उसी के लिए यस। लेकिन क्लास यस के टाइम वो इंस्टॉलेशन का जो भी होगा, क्योंकि बाकी लोग भी अवेयर रहेंगे। यस यस यस, तो अगर हम लोग आपको उसके भी इंस्टॉलेशन लिंक्स दे करने, देंगे। यस, गो ओके अहेड ओके, दीपक। थैंक यू। इंस्टॉलेशन का लिंक मैंने डाल दिया आपको डेटाबेस का। शायद कल मोनिका मैडम आपको या बाद में लिनक्स का इंस्टॉलेशन का लिंक डाल देंगे, क्योंकि उनको ट्राई करना है। ऐसे कितने लोग हैं जो मैक यूज करते हैं यहाँ पे? ग्रुप में पिंग करोगे क्या? किसके पास मैक है, मैकबुक यूज कर रहे हैं इसे? नहीं, राइट? ओके, संगीता। ठीक है, मैं मैक के लिए भी एक लिंक मतलब शेयर कर दूंगी, उसके लिए इंस्टॉलेशन के लिए क्या और क्या जरूरी इसमें है। एक चीज मैंने थोड़ा मिस किया, तो मैंने बात भी नहीं किया मैंने क्लास वालों से, लेकिन थोड़ा सा आपको एक लेक्चर या दो लेक्चर में मैं थोड़ा सा AWS का बेसिक आप लोगों को बता दूंगा कि ऑन प्रीमाइज सर्वर्स है, AWS सर्वर्स में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसमें से दो तीन टॉपिक, जैसे IAM हो गया, EC2 हो गया, S3 हो गया, तो ये आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। और एक आध सिनारियो, रियल टाइम सिनारियो मैं AWS का आपको दे दूंगा। शायद दो तीन लेक्चर लग जाएंगे उनको उस इस चीज को, लेकिन आपको थोड़ा आइडिया रहेगा, ठीक है। ये सपोर्ट में नहीं लगता, लेकिन इफ यू हैव गुड, इफ यू हैव आइडिया दैट विल बी गुड, ठीक है। ऐड ऑन करके हम लेंगे। सर मैंने हाँ सर मैंने ओरेकल डाउनलोड किया था 1 साल पहले, बट अभी उसका पासवर्ड वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। रिन्यू पासवर्ड बोलता है, तो मुझे फिर से अनइंस्टॉल करके नहीं इंस्टॉल करना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, तो शीश यूजर का पासवर्ड रहेगा आपका, याद है आपको शीश यूजर का पासवर्ड? शीश एज अ शीश DBA। वो सर पता नहीं, क्योंकि पहले जो ले रहा था ना पासवर्ड, वो अभी ले रहा नहीं, शायद से 1 साल की वारंटी थी क्या, तो उसको ओके, रिन्यू तो अनइंस्टॉल का पासवर्ड भी का। वीडियो है ग्रुप पे। कौन सा ओके डेटाबेस इंस्टॉल किया था आपने, 19C या 12C? सर, 1 साल पहले का लेटेस्ट ही शायद था क्या, तो पता नहीं, 1 साल पहले का था। ओके, एक साल पहले भी तो 19C था मार्केट में। फिर वही वही होगा सर। ओके ओके, देख लो। अगर आप गूगल पे गूगल करके देखो कि हाउ टू रीसेट दी पासवर्ड, ठीक है, शीश हाँ शीश हाँ का पासवर्ड, अगर आपको उसका सॉल्यूशन मिलता है तो ठीक है। नहीं तो आप क्या करो कि अनइंस्टॉल कर लो। अनइंस्टॉल डेटाबेस के भी वीडियो है यूट्यूब पे। कुछ चीजें खुद से करो। ओके सर। प्रोडक्शन सपोर्ट का रोल ही ऐसा है कि खुद से ट्रबल शूट करना सीखो। ओके जैसे सर। कि ओके कोई आएगा कि हाँ, मैं स्पून फीडिंग मत रखो कोई चीज के लिए, कि खुद से ट्राई करो, ये आपके लिए अच्छा है। ओके सर। ओके एनी क्वेश्चंस गाइस? सर इसमें सपोर्ट में ये APSC में AWS का क्या रोल है? ये AWS के इधर जा सकते क्या, इंटरव्यू दे सकते? कितना इसमें ये वर्किंग में आता है? क्योंकि मेरा AWS सर्टिफिकेशन हो चुका है, तो क्या मैं उसके लिए जाऊँ फिर? डेफिनेटली, आप AWS लगाते तो एड ऑन चीज है। आपको अगर आता है AWS तो नो इश्यूज। तो AWS हाँ सपोर्ट मुझे भी है। AWS सपोर्ट के लिए भी डेटाबेस लिनक्स जरूरी है। वहाँ भी ITL प्रोसेस लगेगी, वहाँ पे भी SDLC लाइफ साइकिल थ्रू ही आपको काम करना है। AWS में सिर्फ AWS नहीं रहेगा, वहाँ पे कंट्रोल एम या Crontab जैसे शेड्यूलिंग टूल भी लगेंगे, ठीक है। कुछ मॉनिटरिंग के लिए Splunk, Dynatrace या Atosis जैसे टूल्स लगेंगे, राइट।
हाँ, इसमें काम आता है ना AWS का? सब कुछ काम आता है भाई, AWS तो ट्रेंडिंग है। नहीं वो है, लेकिन मुझे इसलिए काम उसमें जॉब नहीं मिल आप रहा अगर कि AWS एक तो डालोगे है। तो दैट इज एड ऑन एडवांटेज। ओके, काम सर हर जगह आता है, AWS ओके, आएगा ही काम में, ऐसा नहीं कि काम नहीं आएगा। नहीं मुझे जैसे वो सर आता है, विदाउट AWS का कोई प्रॉब्लम नहीं। विदाउट AWS भी सर चलेगा ना, क्योंकि मुझे तो नहीं है फिलहाल कुछ नॉलेज उसका। नहीं नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि AWS चाहिए। देखो, सारी कंपनीज अभी क्लाउड पे नहीं बैठी है, ठीक है। बाकी कंपनीज ऑन प्रीमाइस पे। ऑन प्रीमाइस क्या होता है कि कंपनी है, खुद का डेटा सेंटर है, खुद के नेटवर्क है, खुद का रैक है, खुद के सर्वर्स है, खुद स्विचेस, खुद ब्रिज, ऐसे उन्होंने खुद हार्डवेयर जो भी है खुद ने परचेस किए है, उसको बोलते हैं हम ऑन प्रीमाइस। और क्लाउड क्या होता है कि हम थर्ड पार्टी के भरोसे बैठे हैं, हमारा डेटा और तीसरा कोई मैनेज कर रहा है, मीन्स तीसरी जगह हम स्टोर कर रहे हैं। जैसे AWS है, ठीक है, अमेजोन का, गूगल का GCP है, माइक्रोसॉफ्ट का एजूर है। तो है कि हमें कुछ लेना देना नहीं, जितना हम यूज करेंगे उतना पैसा हमें पे करना है, ठीक है। तो ये क्लाउड है, तो जरूरी नहीं कि आपको क्लाउड आना ही चाहिए, लेकिन दैट इज एड ऑन एडवांटेज आपको अगर आता है, ठीक है। तो टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम चीजें सीखेंगे, आपको सीखना पड़ेगा कि आप पूरा, आपका पूरा जिंदगी आप सपोर्ट में नहीं काटोगे, तो सपोर्ट में भी आपको AWS सीखना होगा या अदर कोई क्लाउड सीखना होगा, थोड़े DevOps से रिलेटेड टूल सीखने होंगे, खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा IT में। हम लोग ऐसे झूठा कमिटमेंट नहीं देंगे कि हाँ आप सपोर्ट सीख गए, आपका लाइफ स्टेबल हो गया। आपको सीखना तो पड़ेगा, जिंदगी भर चीजें अपग्रेड करनी पड़ेगी। नोकिया ने खुद को अपग्रेड नहीं किया तो पीछे रह गया, जिसका मार्केट सबसे बड़ा था पहले। और सर ये जैसे कि पाइथन वगैरह ये भी इम्पोर्टेंट है क्या सर, कि शेल स्क्रिप्ट में काम हो जाएगा? देखो भाई, ऐसे तो जावा भी इम्पोर्टेंट है, .NET भी है, रिएक्ट भी है। सब चीजें एक प्रोजेक्ट में यूज नहीं होती, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। पाइथन सपोर्ट वालों को पाइथन जरूरी नहीं है, यू आर नॉट डूइंग द पाइथन सपोर्ट। डेटा साइंस साइड आप जा रहे हो, ठीक है, या मशीन लर्निंग साइड जा रहे हो, सो पाइथन इज इम्पोर्टेंट डेफिनेटली। तो आप वहाँ पे डेटाबेस और लिनक्स लेके नहीं जा सकते कि आपको एज ए डेटा साइंस डेवलपर जाना है या AIML में जाना है, ठीक है। हाँ, तो यानी पाइथन मुझे ये उस पूछना था कि यानी स्क्रिप्टिंग के लिए भी शायद पाइथन यूज करते हैं ना? स्क्रिप्टिंग के लिए हम लोग, देखो स्क्रिप्टिंग के लिए आइदर यू कैन यूज द पाइथन और शेल, बोथ आर दी पावरफुल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। सो हम लोग यहाँ पे शेल यस सर, स्क्रिप्टिंग सीख रहे हैं। सो ऑटोमेशन जो करेंगे हम, वो शेल स्क्रिप्ट थ्रू करेंगे, तो हमें जरूरत नहीं पाइथन यस सर, सीखने की। यस सर, यस। कोई और भी एक मोनिका लैंग्वेज मैम, पकड़ लो। मोनिका मैम, मैंने जो Yes. वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल किया है ना, वो उबंटू का किया हम्म। है, तो उसमें काम हो जाएगा ना उबंटू प्रैक्टिस के लिए? एक्चुअली। प्रैक्टिस वर्चुअल के लिए बॉक्स उबंटू का नहीं आता भाई। नहीं, वो जो रेड हैट की जगह मैंने उबंटू का किया है, यानी प्रैक्टिस के लिए। मैं प्रेफर करूंगा कि एक ही अगर RHL आप लोग इंस्टॉल करो, तो क्या होगा कि उबंटू में एक आध दो कमांड नहीं चलेगी जो RHL में चलती है, ठीक है। जो अभी ओके ओके। RHL 9 मार्केट में ट्रेंडिंग है, जो सारे लोग 9 पे माइग्रेट हो रहे, 7 6 से, क्योंकि वो एंड ऑफ सपोर्ट हो गया शायद वो नवंबर 2024 से, ठीक है। तो अभी सब लोग 9 RHL 9 पे जा रहे हैं। तो बेटर कि इफ यू इंस्टॉल RHL 9, so that will be helpful for you। ओके सर, मैं अनइंस्टॉल कर दूंगा उसे, पुराने को। हाँ, उसका वीडियो देख लो बस, कैसे ओके इंस्टॉलेशन करना है RHL का, वो मोनिका मैडम आपको लिंक्स दे देंगे। ओके ओके। यस, मैंने हाँ। मतलब चैट में कॉपी पेस्ट किए कुछ लिंक्स, आप प्लीज रेफर कीजिएगा। यस मैम। यस मोनिका एंड दीपक, मुझे पूछना था कि अभी जो भी डिस्कशन हुआ, जो पहले के सीनियर लोग यहाँ पे थे बैच के, वो तो कुछ समझ में नहीं आया मुझे। तो मुझे बस शॉर्ट में एक बात पूछनी कि हम जो प्रोजेक्ट कभी करने वाले ये प्रिपरेशन के बाद में, ये हम बैंकिंग रिलेटेड करेंगे, टेलीकॉम करेंगे, हेल्थ केयर करेंगे, तो मतलब क्या रहेगा सर? हाँ, क्योंकि हमें कुछ आइडिया, मुझे तो फिलहाल मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है ये कैसे होगा है। वीरेन, कैसा रहेगा कि हम डेटाबेस इंस्टॉल करते हैं तो कुछ प्री डिफाइंड टूल्स टेबल्स हमें मिलते हैं, राइट। तो हम आपको हमारे प्रोजेक्ट का रियल टाइम डेटा यहाँ पे डिप्लॉय करके नहीं दिखा सकते, क्योंकि दैट इज फॉर सम सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रीजंस। हम वहाँ से डेटा
उठा के यहाँ पे डिप्लॉय नहीं करेंगे। आपको बताएंगे कि किस टाइप का यूज केस होता है, किस टाइप की रिक्वायरमेंट्स होती है क्लाइंट की। ठीक है, जो सिनारियो हमने आज तक जो फेस किए है वो हम लोग आपको बताएंगे। तो आप हम लोग अगर आपको सिर्फ मान लो कि बैंकिंग में ट्रेन कर रहे हैं और कल उठ के अगर आपको टेलीकॉम डोमेन है समझो, वहां पे ओपनिंग है, तो आप वहां पे काम कर पाओगे क्या? तो हम लोग आपको ग्लोबली पढ़ाएंगे कि भूल जाओ कि टेलीकॉम है, बैंकिंग है, ई कॉमर्स है, या कोई भी एप्लीकेशन या डोमेन है। ठीक है, तो आपको हम लोग बताएंगे कि रियल टाइम में काम कैसे होता है, ये बैंकिंग एप्लीकेशन है या ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, जो भी है। ठीक है, तो उसमें रियल टाइम में जो भी काम होगा उस हिसाब से हम सिनारियो बेस पढ़ाएंगे आपको। ऐसा आप डोमेन स्पेसिफिक दिमाग से हटा दो सीधा, डोमेन स्पेसिफिक नहीं पढ़ाएंगे हमको, आपको रियल टाइम और सिनारियो बेस पढ़ाएंगे। हेलो सुहास सर। हेलो। यस टेल मी। हेलो सुहास सर, मेरा आवाज आ रहा है? प्रतीक बात कर Pratik, रहा हूँ। my name is Deepak. Actually, I joined from Suhas account. Okay, that is different laptop. Okay, tell me. ओके प्रॉब्लम। हाँ दीपक सर, मेरा प्रॉब्लम ये है, मतलब कि मैं ये मतलब मेरा जो बैकग्राउंड है वो मतलब एजुकेशन बैकग्राउंड है वो तो टेक्निकल है, लेकिन वर्किंग मेरा पूरा फाइनेंस सेक्टर में हुआ है अभी तक। तो ये सब चीजें मेरे लिए थोड़ा न्यू है पूरा। तो ये इस बारे मुझे में लगता है आपके लिए नहीं रहेगा सिर्फ, बहुत सारे लोग रहेंगे यहाँ पे ना, कि ये राइट। जिनके लिए ये पूरा नया है। ठीक है, यस। तो हमने स्टार्ट में ही बताया कि हम लोग तो आपको जैसे कुछ कंसिडर कर ही नहीं रहे। हम लोग हाँ आपको नहीं ऐसे कंसिडर कर रहे हैं कि आप एलकेजी में एडमिशन लेके बैठे हो और हमें आपको एलकेजी से लेके हमको ग्रेजुएशन तक ट्रेन करना है। ये नहीं माइंडसेट कैसा से है, हम आपको पढ़ाएंगे। हाँ वही मतलब कैसा है, कोई लोगों का यहाँ पर इससे पहले कुछ टॉपिक्स या कुछ हाफ हाफ कोर्स ऑलरेडी हो चुका है, हमारा उसमें कुछ हुआ नहीं है, तो क्या समझ में नहीं आएगा। लड़कों ने बोला है कि हमें यहाँ से पढ़ाइए वहां से पढ़ाइए, इनकेस ऐसा अगर हो जाए तो हम कुछ देखो भी भाई, समझ जिन्होंने पढ़ा है ना, आधा आधा अधूरा पढ़ा है, या उनको कुछ कंसेप्ट में से, हम उनको भी कंसिडर नहीं करेंगे। हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। हम किसी का सुनेंगे भी नहीं कि हम यहाँ से पढ़ाना है या हो गया, एग्जैक्टली। या इतना इजी है। हमें नहीं पता कितना इजी है हमारा, तो हम उतना एफर्ट देंगे कि हम जीरो से पढ़ाए आपको कि हाँ ये क्या राइट। है, इवन टेबल क्या होता है। टेबल मीन्स हम आपको रियल टाइम एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे मेडिकल आप एक मेडिकल देख लो, वहाँ पे भी एक टेबल बना होता है, तो उसमें ड्रावर्स होते हैं। तो ड्रावर्स को कंसिडर कर लो एक रोज है या रिकॉर्ड्स है। ठीक है, तो कॉलम्स क्या होते हैं, वो हम आपको इस रियल टाइम एग्जांपल के साथ सिखाएंगे कि आपके दिमाग में वो चीज जाए। हमें नहीं पता ओके। पहले किन किन लोगों ने कैसे पढ़ा है। ठीक है, मतलब ये आप मत फ्रेशर समझिए। ही हो, इस तरह से हम लोग आपको पढ़ाएंगे। सो डोंट राइट वरी राइट। अबाउट दैट। और या ऐसा भी नहीं कंसिडर करेंगे कि इवन आपका ग्रेजुएशन टेक्निकल से हुआ है, यस, इफ यू तो आर भी हमें टेक्निकल लेना और देना नॉन नहीं। टेक्निकल। या यस यस। सबको समझ हेलो आया ओके, थैंक वैसा यू। पढ़ाएंगे। सॉरी। हाँ हाँ यस। दीपक, मेरा एक क्वेश्चन है। जो हम अभी इसमें पॉड्स वगैरह रहते हैं, एजूर के लॉग्स वगैरह, वो भी आप उसमें कवर करोगे? नहीं, ओके। एंड जो जॉब्स रहता है क्रॉन जॉब वगैरह, तो हाउ टू रिशेड्यूल वगैरह की कैसा ये उसको बताएंगे, रिशेड्यूल करते ये हैं? बताएंगे। हाँ। यस, ये क्रॉन टैब बताएंगे। ओके। वगैरह, क्रॉन टैब मैडम बता देंगे आपको। ठीक है, ओके, यस मतलब न्यूली शेड्यूल कैसा करना है जॉब, ये भी कवर? सब कुछ यस बता देंगे। यस यस जीरो यस। से लेकर ओके उसमें ओके कितने फील्ड्स होते हैं, कब मीन्स उसमें जो भी फील्ड्स होते हैं उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, एक आध जॉब आपको मैडम रन करके दिखाएंगे रियल टाइम पे आपके सामने। ओके, थैंक यू। ठीक है, क्रॉन टैब की बात कर रहे हो आप, राइट? हाँ, क्रॉन जॉब। ठीक है, वो सब दिखाएंगे आप। हो सकता है कि मैं और मेरा कुछ ऐड ऑन करूँ, कि मैं भी मैडम के साथ एक आध दो लेक्चर में ज्वाइन कर लूँ, मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, तो ये है यस सर, लिनक्स को लेके। सर ऑटो सीज भी करने वाले हैं ना मैम हम होने का मैम कवर? यस यस, ऑटोसिस भी कवर करेंगे। देखो सूरज, जो आपका एक्सपेक्टेशन है सब लोगों को एकदम क्लियर बता देता हूँ। जो टूल्स हमें डेमो वर्जन पे अवेलेबल है वो हम टूल्स पे आपको दिखा देंगे। जो टूल्स डेमो वर्जन के लिए नहीं, जो इंटरप्राइज टूल्स है
जो उसका लाइसेंस लेना पड़ता है, वो टूल्स हम आपको रियल टाइम में या ऐसा डाउनलोड करके नहीं दिखा सकते, तो वो आपको सिर्फ पीपीटी पे ही बताया जाएगा। हो सके हम ज्यादा से ज्यादा उसका इंफॉर्मेशन शेयर करें, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और जो भी है वो हम वहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है। हाँ सर, चलेगा चलेगा। ठीक है, सर तो मॉनिटरिंग टूल एक्सपेक्ट ग्राफाना ले रहे हो या नेगियोस ले रहे हो? ग्राफाना बता देंगे मैडम आपको, मोनिका ग्राफाना लेंगे आप। ग्राफाना डायनाट्रेस आपको मैं बता दूंगी। हम एपीएम ओके। टूल भी बता सकते हैं इसमें। सॉरी, एपीएम टूल भी बता सकते हो आप इसमें। एपीएम? हाँ, एपीएम टूल। नहीं, ये नहीं कवर होगा। एप्लीकेशन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग That टूल is वही है only वही है। that is only Dynatrace. यस यस वही ओके है। ओके Yes. ओके ओके। यस, दीपिका एंड मोनिका, एक लास्ट सवाल है मेरा। जैसे हर रोड मैप का एक डेडलाइन होता है, तो इस जो हमारा जो रोड मैप है उसका कुछ डेडलाइन है कि मतलब वो थोड़ा एक्सटेंड भी हो सकता है, ऐसा कुछ है? आप बोल रहे हो कि टाइम ड्यूरेशन कितना जाएगा इसको कोर्स को, राइट? करेक्ट। हाँ, तो हम लोग तो ट्राई करेंगे कि 2.5 मंथ्स, ठीक है, उसको रैप करने का। हो सकता है सैटरडे संडे हम थोड़ा सा स्ट्रेस कर ले, आप भी रिलैक्स रहोगे। सैटरडे शायद मोनिका मैडम लेंगे, सैटरडे मैं इंटरव्यू में रहता हूँ, तो संडे मैं ले लूंगा, ऐसे कुछ करेंगे। बट लेंगे तो उस टाइम पे ऐसे 2-2.5 घंटा ले लिया, 1 घंटा लिया, फिर 15-20 मिनट ब्रेक लेके फिर और 1 घंटा ले लिया, ऐसे। ठीक है, तो हम लोगों को ज्यादा टाइम मिलेगा आपसे कन्वर्सेशन करने में। ठीक है, हम लोग ज्यादा एक्सपीरियंस शेयर कर पाएंगे आपके साथ। तो ये हमारा प्लान है। तो टाइम को लेके 2 मंथ्स एंड 2.5 मंथ्स उसमें हम रैप अप करने का सोच रहे हैं। बट आप ग्रेट कितना एंड कोऑपरेट कर रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट है। यस उस हिसाब एब्सोल्युटली। एंड मोनिका एंड दीपक, ये आप जो पैरेलल लोगे, लिनक्स मैडम लेंगे या आप लोग डेटाबेस, तो इनका जो टाइम है ये सेम ही 8 से चलेगा पीएम, या मॉर्निंग में भी कुछ रहेगा कि मैडम सुबह लेंगे या आप शाम लोगे, ऐसा मतलब कुछ टाइम आपको ड्यूरेशन बाकी फिक्स लोग है? वर्किंग है, राइट? सो मैंने ऐसे ही सोचा था। सो लेकिन मुझे फीडबैक मिला मैनेजमेंट से कि फ्यू पीपल आर वर्किंग, राइट? सो ये मैनेज नहीं हो पाएगा ऐसे। हमें दिक्कत नहीं है, बट ये इशू है कि आपको मैनेजेबल नहीं रहेगा। हाँ बाकी हाँ, लोगों क्योंकि से हम तो शायद मॉर्निंग में वर्किंग है तो नहीं होगा, पॉसिबल नहीं हमारे। तो एग्जैक्टली। तो हम इवनिंग का सोच ही हम लोग बैच लेंगे। अगर वीकेंड मतलब रहेगा तो उस दिन हम लोग ले सकते हैं 11-12 बजे अराउंड। और जो फुल टाइम मतलब खाली है 24/7 खाली है, उनके लिए कुछ सॉरी वीरेंद्र, वो जो कुछ मतलब समझ। फुल डे प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो जैसे कि हमें अभी कुछ पता नहीं, फ्रेशर्स हैं, तो हाँ, वो पूरा दिन खाली होता है और हमको 8 बजे का वेट करना होगा, 8 PM का। तो दिन भर मतलब क्या करें, ऐसा कुछ बता सकते हैं? देखो, हमारा प्लान कैसा है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हम लोग एक ही, हमने ऐसे सोचा था कि एक वीक ये लेंगे, एक वीक लेंगे, हम लेंगे। तो 3 दिन मैं ले लूंगा, 3 दिन मैडम लेंगे, लेकिन उसमें आपको अपना टाइम निकालना है। उसमें नो एक्सक्यूजेस। ठीक है, 24 घंटे सबको मिलते हैं, हमें भी मिलते हैं, हम भी वर्किंग है, हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हम भी टाइम निकाल रहे हैं आप लोगों को पढ़ाने का। सिर्फ हमें पढ़ाना नहीं, उसके पीछे हमें और 2 घंटा एक्स्ट्रा एफर्ट है। अगर हम 1-1.5 घंटा आपको पढ़ा रहे तो हमें नोट्स प्रिपेयर करने में उतना टाइम जाएगा। ठीक है, सो फॉर सम रीजंस वी हैव टू सैक्रिफाई आवर पर्सनल लाइफ फॉर फ्यू नहीं, डेज। ये दीपक सर ही इज आस्किंग डिफरेंट, कि वो ओके। पूछ रहे हैं, उनका क्वेश्चन ये है कि वो फ्रेशर है तो उनके पास मतलब टाइम है दिन भर में, तो उनको ओके, हर रोज 8 PM तक वेट करना पड़ेगा। सो मतलब उनको ये चाहिए कि अगर उनके लिए कुछ दूसरा ऑप्शन रह सकता है क्या? एम आई राइट वीरेन, यू आर आस्किंग दैट ओनली? एब्सोल्युटली राइट मोनिका, ये ओके। पूछना था कि दिन भर खाली है तो हमें शाम का वेट करना होगा, तो दिन भर क्या करें कि हम अगर 4-5 कमांड पढ़ ली, ठीक है, 4-5 की प्रैक्टिस भी होगी, लेकिन दूसरे नहीं वीरेन, सेशन का वेट करना।
हम लोग आप लोगों को ना टास्क देंगे, यस हम लोग खुद आपको खाली नहीं बैठने देंगे, उसमें हमारा लॉस है, राइट? क्योंकि हमें और ज्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे आपको अगर आप लोग खाली बैठो तो, क्योंकि आप क्योंकि हमें नहीं चाहिए कि ये आप ब्लैंक पेपर हमारे पास आ रहे हो दूसरे दिन उठ के, तो डेफिनेटली हम मेक श्योर करेंगे कि आपको टास्क देंगे, ठीक है? यस, और मुझे हाँ इतना समझ में आ गया जितना भी यहाँ पे डिस्कशन हुआ कि ये जो रोड मैप है वो थियोरेटिकली थोड़ा सा है 20-30%, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ से उठकर डायरेक्ट कंपनी में जाके काम करना है, प्रैक्टिस ज्यादा होना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट वीरेन, थेराटिकल हम कुछ भी नहीं लेंगे यहाँ पे, थेराटिकल का सीधा हम नोट्स बना के आपको दे देंगे, आपको वो पढ़ना है, हमारा फोकस रहेगा प्रैक्टिकल पे, थेराटिकल हम कुछ नहीं देंगे। और जो भी आप बोल रहे हैं ना 20-30% थेराटिकल, सो आपको जो भी इंटरव्यू में बोलना है, सो ऑल दिस प्रैक्टिकल थेराटिकल थिंग यूजिंग द प्रैक्टिकल, जो भी प्रैक्टिकल हमने पढ़ाया उसको आपको एज्यूम करके ही विजुलाइज करके ही आपको थेराटिकल आंसर देने, सो वो भी हम नोट्स में आपको दे देंगे, ठीक है? और आपका जो भी एजम्पशन है कि 20-30% इवन लेस यू कैन कंसिडर इट, आपको जो भी ओके, फोकस देना है वो प्रैक्टिकल पे देना जी है। जी करेक्ट। आपके साइड से तो क्लियर था मोनिका और दीपक, आपके साइड से सेशंस का, लेकिन ये जो बीच में सॉफ्ट स्किल्स जो या हर बार पढ़ा रहा है, तो वो हमारे सेशन के बीच में होगा या फिर गैप हो जाएगा टेक्निकल रिलेटेड? Actually, I am not aware about this. Even यस Monica madam also don't aware about मतलब ओके, नो सॉफ्ट नो स्किल्स प्रॉब्लम। क्या ले रहे हैं, वी आर नॉट अवेयर अबाउट दैट, बट soft अगर अच्छी skill. बात है आपका कुछ सॉफ्ट स्किल्स का कुछ ट्रेनिंग चालू है, सो वो भी कंटिन्यू कीजिए, बिकॉज ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप कौन से कंपनी में जा रहे हो, इवन एज अ फ्रेशर और एनी एक्सपीरियंस पर्सन, तो आपको कैसे कम्युनिकेट करना आना चाहिए, वेदर यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम और वर्नाकुलर मीडियम, दैट डज नॉट मैटर, बट आपका कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहने चाहिए। तो अगर कुछ सॉफ्ट स्किल का साइड बाय साइड चालू है, तो उसको भी थोड़ा सा टाइम दे देना, बट मोस्ट मतलब आपका जो टाइम रहेगा वो टेक्निकल चीजों में डालना, जो हम लोग आपको पढ़ाएंगे। यस, ग्रेट। मोनिका मैम एंड मोनिका मैम, हमें आप रिज्यूम बिल्डिंग में भी हेल्प करोगे ना, रिज्यूम प्रिपरेशन में? एग्जैक्टली वो सब आपको बता देंगे जो कुछ है। एक्चुअली आ, इंटरव्यू में बैठते वक्त क्या बोलना है, कैसे बोलना है, इंटरव्यूअर को कैसे घुमाना है, कौन से पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ेगा, ये सारी चीजें कवर हो जाएंगे, डोंट वरी। जब आपको खुद को टेक्निकली आप जब परफेक्ट बनोगे, आपको नॉलेज रहेगा, आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, तो आप इंटरव्यू भी क्रैक कर सकते हो। बट इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप कितना यहाँ पे सीख पा रहे हो, और आप मतलब क्वेश्चंस भी कैसे पूछ रहे हो, और आप क्या नॉलेज गेन कर रहे हो, और ये क्लास होने के बाद भी आपको जो टास्क दिए गए हैं वो कंप्लीट आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सो इवन ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने अगर आपको 2 टास्क दिए हैं तो आप उसके ऊपर भी और कुछ करके आ सकते हो, ये आपका ही बेनिफिट है। अगर आपको जल्द से जल्द इंटरव्यू क्रैक करना है, आप जल्द से जल्द आपको आईटी में आना है, सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितना एफर्ट ले रहे हैं। अगर कोई फ्रेशर है, उसके दिन भर टाइम है, तो उसके लिए तो ये एड ऑन एडवांटेज है कि वो ज्यादा टाइम इसमें स्पेंड करे और जल्द से जल्द मतलब इंटरव्यू क्रैक करे। एक्चुअली मोनिका मैम, एक कंसर्न था, मीन्स लाइक थोड़ा ज्यादा फोकस, एंड एज पर माय एक्सपीरियंस, एक्चुअली मैं ओल्ड स्टूडेंट हूँ अर्बर का, ओके। सो मैं प्लेस भी हूँ, नाउ आई एम वर्किंग, बट मेरा कंसर्न ये था कि सबसे ज्यादा जो थेरोटिकल पार्ट है वो सिर्फ नॉर्मली एज ए इंटरव्यू के लिए बेस्ट है, ओके। बट सबसे ज्यादा फोकस प्रैक्टिकल पे इम्पोर्टेंट ज्यादा है, मीन्स मे बी सिनेरियो बेस्ड सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है इंटरव्यू में। एग्जैक्टली और आपको एक्चुअली वहां पे मतलब आप काम करने जा रहे हो ना वहां पे, तो आप जब बैठोगे, हाँ, आपको कौन सा कोई क्वेरी आया, कौन सा इशू आया, तो आपको पता तो रहना चाहिए कि मुझे अभी कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो यस यस इसके यस लिए यस। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बार प्रैक्टिकल में आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे तो वही तो थेराटिकल है, आप नहीं, खुद कर करंटली पाओगे वो। मैं तो अभी करंटली वर्किंग इन एमआईएम, ठीक है। मैं ओके एमआईएम में वर्किंग कर रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है। सो इस वजह से मैंने सोचा कि ये क्लास करूँ, बट थोड़ा प्रैक्टिकली हमें जो लाइव सिनेरियो बेस्ड चाहिए, अब जो एप्लीकेशन सपोर्ट का है, थोड़ा लाइव सिनेरियो बेस्ड पता चल गया तो फिर कर सकते हैं। यस यस डेफिनेटली।
सो अभी कुछ क्वेश्चंस है या रैप अप करें? मैम मुझे एक लास्ट हाँ हाँ एक्चुअली मैम मैंने कोमल मैम से बात की थी, तो मैं हाउसवाइफ हूँ, तो मैं बोल ओके रही थी कि अगर मुझे बैच चेंज मिलेगी या मतलब दिन में या फिर दोपहर को, तो वो नहीं बोले। मतलब मुझे ये पूछना था कि अगर मैंने किसी दिन अटेंड नहीं किया रात को, तो मुझे क्या मतलब हर रोज के लाइव रिकॉर्ड मिल सकती है क्या? लाइव नहीं बट रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मतलब रिकॉर्डिंग मिल सकती है क्या हर दिन की? यस, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे। आप एक बार बात कर लो क्लास में, रिकॉर्ड तो हर सेशन होना चाहिए। बट प्रणाली थोड़ा टाइम निकालना 1 घंटे के लिए। आई कैन अंडरस्टैंड कि आप हाउस वाइफ हो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहता है, बट 1 घंटा खुद के लिए ट्राई करना निकालने के लिए। अगर जिस दिन आप नहीं निकाल पाए उस दिन रिकॉर्डिंग देख लेना, कुछ आपको क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे तो वो देख लेंगे हम लोग, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि आप ट्राई करो 1 घंटा निकालने के लिए। जो कुछ भी काम रहेगा वो 1 घंटे में आप साइड में रखो या उससे पहले करवा के ले लो, ठीक है? नहीं मैम, बट मैं अटेंड कर लूंगी मैं, बट कभी कभी ऐसा हुआ तो ऐसा पूछ रही थी मैं। yes 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 recordings will be there. But ma'am, Okay. actually, my name is Saurabh and I work in the night shift. So I speak with the Saba team. So they said they will provide recording session every day. Yeah, even they have recorded today's session, so definitely Yes, they will post it. so ma'am, actually that is only the reason. Every day I'll try to join, but like if not, then if the record session will be there, it will be good for us. Yeah, that's fine. But whenever you're not available for the lecture, then please go through that recording and do the revision whenever you come to the next lecture. That's the expectation. Yes, Blankly मत बैठा करो next lecture में, because I am going to ask the questions और मैं किसी को भी call out करूंगी और मैं questions पूछूंगी. So that's the way of my working. So you have to be prepared. मोनिका, एक सवाल था मेरा कि हमने बहुत सारे टूल्स के बारे में अभी सुना सेशन में, लिनक्स एसक्यूएल ये है। ये एप्लीकेशन सपोर्ट का जो बेस है, मतलब किस चीज पे ज्यादा फोकस होना चाहिए? कमांड्स पे होना चाहिए, डेटाबेस पे होना चाहिए? सबको एक साथ फोकस थोड़ा सा अनफोकस हो जाता है, तो किस चीज पे ज्यादा फोकस होना चाहिए एज अ बिगिनर लेवल मेरे लिए? वीरेन एज ए एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर, हमने आपको जितना भी बताया वो पीपीटी में भी, वो सारी चीजें इम्पोर्टेंट हैं। आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि सिर्फ मैं डेटाबेस पे फोकस करूँ या लिनक्स पे फोकस करूँ या सिर्फ ये ही टूल देख लूँ। जितने भी टूल्स हम लोगों ने डाले हैं वो ऐसे एक्सपेक्टेशंस करके डाला है कि अगर कोई 4 साल का भी एक्सपीरियंस वाला बंदा रहेगा और वो अगर जा रहा है तो उसको ये सारी चीजें पता है, ठीक है? तो आप मतलब एक पर्टिकुलर चीज पे नहीं फोकस कर सकते, आपको लिनक्स भी आना चाहिए, आपको डेटाबेस भी आना चाहिए और टूल्स भी आपको पता रहना चाहिए एज अ एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर। एनीथिंग एल्स गाइस? ये अभी जो अपकमिंग सेशंस होंगे, तो अभी जो फर्स्ट संडे आएगा तो वो ऑफ रहेगा कि मतलब उसमें भी आप सेशन कंडक्ट करोगे? या दैट वी विल डिसाइड। आज ही पहला लेक्चर हुआ है तो इंटरनल डिस्कस करके वैसे बता देंगे हम लोग आपको ग्रुप पे, ठीक है? ओके मैम। मैम कल से स्टार्ट होगा क्या रेगुलर की, और शेड्यूल होना बाकी है? दैट कल वी से नीड। आई थिंक हम लोग थर्सडे से करेंगे प्लान, राइट? सो थर्सडे से? या ऐसे शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन जो भी है, जो हम लोग डिसाइड करते ओके हैं, सर, ठीक है? तब तक ठीक है सर, चलेगा। वैभव प्लीज शेयर द पीपीटी। मैं आपको व्हाट्सएप पे चाहिए तो ये भेज दूंगी। मुझे यहाँ पे टीम चैट में पीपीटी नहीं जा रहा है। आई वाज ट्राइंग, तो मैं आपको जो व्हाट्सएप का ग्रुप है चाहिए तो वहां पे पीपीटी शेयर कर दूंगी, ठीक है? ओके फिर गाइस।
यस, कल सेशन होगा मैडम, क्योंकि अभी दीपक सर ने बोला थर्सडे से होगा। हम लोग बताते हैं आपको, ठीक है, आपको बता व्हाट इज देंगे। सिस्टम, यस बट एक यस चीज तब तक आप इंस्टॉलेशन कर लो तो अच्छा है। यस यस यस, जितना भी लिंक्स दिया है प्लीज गो थ्रू और वो इंस्टॉलेशन कर लीजिए। डेटाबेस के लिए ओरेकल के लिए जो आपको दिया है दीपक सर ने वो वाला, और लिनक्स के लिए भी मैंने मैकबुक के लिए और जो विंडोज है जिनके पास लैपटॉप उनके लिए भी मैंने दिया है लिंक्स, तो रेफर कीजिए और इंस्टॉल कर दीजिए। सो सी यू ऑन थर्सडे। हेलो। हाय। हेलो। यस इस सागर दिस side। आपने ये लिंक डाला है फॉर लिनक्स काइंडली इंस्टॉल वर्चुअल बॉक्स। पहले ये वर्चुअल बॉक्स VMware इंस्टॉल करना है, फिर बाद में RHEL 9 यस यस यस। विंडोज पे, ठीक है। आप वीडियो गो थ्रू करो, आपको आइडिया आ जाएगी, एक आपको बार सब ये आइडिया आ जाएगा। यस हाँ ठीक है। बाकी जो चीजें हैं, आपको अगर कुछ डाउट्स है तो हम थर्सडे वाले सेशन में लेते हैं। एक ही दिन में सारे डाउट्स आप दिमाग में मत लो, ठीक है। जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा आपके डाउट्स भी क्लियर होते जाएंगे। इतना एक ही दिन पहले के स्ट्रेस में मत छो आप लोग। हाँ, लेकिन आज एक ही सेशन में मोनिका और दीपक आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी, उससे आइडिया गया कि करना क्या है और किस प्रिपरेशन के या रोड मैप के थ्रू जाना, ये बताया आपने, उसका ड्यूरेशन भी बताया। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। Thank you, thank you. We are not expecting No thank you, issues. but we are Yes expecting your efforts. Okay. yes What we are yes. going to deliver, we are expecting same. We should give the same effort. That is for your benefit. और हमारा एक ही मोटो है, एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आप लोगों को चीजें समझे और आप अच्छी जगह प्लेस हो, और उसके लिए हम लोग ऐसा टाइम वगैरह ये चीजें नहीं देखेंगे। आपको जितना सपोर्ट हो पाएगा हम लोग करेंगे, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है। Hello, ma'am. यस Ma'am, my laptop is not configured, means not 4 GB or something. So I already installed the Linux Mint. Okay, is it okay for that instead of Red Hat? आरी एक चीज कर सकते हो, और आप सुबोध सुबोध राइट, हाँ, Yeah. तो आप एक सिंपल सा यूट्यूब पे वीडियो देख लो। जैसे आप AWS का सिंपल एक अकाउंट बना लो, उसमें एक EC2 इंस्टेंस आप लॉन्च कर लो, राइट। उसको ₹2 लगते क्रेडिट कार्ड से शायद, ठीक है। और वो EC2 इंस्टेंस इतना मेक श्योर Please करना। repeat it again. सॉरी, Can you? I'm writing, sir. Can you please repeat it? मैं आपके लिए वो लिंक भी पेस्ट कर देती हूँ। अगर आप AWS से इसी मतलब REH इंस्टीट्यूशन लॉन्च करना चाह रहे हो तो आप ये लिंक रेफर करना, मैं आपको दे रही हूँ। I will go through. Thank you so much. श्योर, नो इश्यूज। मैं चाहिए तो व्हाट्सएप पे ये लिंक भेजती हूँ। आई डोंट नो, मुझे ये टीम्स पे नहीं हो रहा है। श्योर। एनीथिंग एल्स गाइस? मोनिका, ये लिनक्स के लिए मेरे पास में उबंटू है, तो उसके ऊपर मैं वो यूज कर सकता हूँ। आप RHEL ही कर लीजिए, बिकॉज वो मैं सबके लिए कॉमन रखूंगी, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 1-2 कमांड का ही डिफरेंस रहता है जो वहां पे नहीं चलता है, बट स्टिल आप उसी प्लेटफॉर्म पे कीजिए RHEL। So can we wrap up guys right now? Yes, ma'am. Okay. Thank you everyone. Thank you so much. Thank you you. Deepak sir. Thank you, ma'am. Thank you, bye. Thank you. Thank you, Deepak Bye. sir. Thanks guys, thank you, bye.